Priya is also. Yes. Let's wait for 5 minutes, I guess, Ajay. Of course, because we will wait for 5 minutes. The participant should join. I think so they are joining early. Hi, Ajay. Good morning. Hi. Just to update you, good morning, everybody. We are waiting for another 5 minutes that attendees are joining. Let them join, and then we can start in next 5 minutes. Yeah, Ajay, we'll do that. Great. Let me share the screen also. Ajay, the screen is visible. Ajay, you are on mute. Yes, we can see that. And you will take care of post. Let me introduce the whole team. Sure, Then you'll share start the with them. details. Then only I'll start. Okay. Ajay, I guess few participants are also joined now. I think so, yeah, they are still joining now. Yeah. What do you expect? Should we start or should we wait for another 1 or 2 minutes? We can wait for 1 or 2 minutes. Priyanka is also already there. Good. Okay. Ajay, so how many people are we expecting to join the call?
Priyanka, I think the 30 to 50 people will be at least joining right now. Because Okay, these so are the leading companies only, company okay, representative only. And we have just okay, focused on the Tritya, what I and Nagendra has started, because upcoming events, you are aware that we are doing an exhibition in Bangalore. right. So we have specially called everybody from that region. Okay, so people are mostly from Bangalore region or No, it's no, no, Bombay, no, across India, okay, who okay, who will be participating in Bangalore. okay, okay. So currently I can We see will about wait. 36 participants have already joined in. So Yeah, just give us a go ahead when it's good to go. absolutely, we will wait. Nagendra, I think so. We are good to go. People have, I think so, 50, 55 people have already joined. Okay, If Ajay. you can say that we can start. Okay, good morning, everybody. I, Ajay Pathak, on behalf of JGPC, welcomes you for another fruitful Make My Trip session. This is to give you a background that JGPC and Make My Trip has done a partnership with Make My Trip in 2022 only. And to continue this valuable relationship, we keep on organizing this benefit interaction sessions. And now the team with us is Nagendra Singh, Riya Lamba, Priyanka, and Alin Singh. These are the core teams that will help you to understand why Make My Trip, where you can do the maximum benefit being a corporate or an individual. You can avail the services for your personal use as well as for your corporate companies alliance. The best part is this is the core team that can make you to understand the usage and where they are taking to. I think so. ये दोनों भाषा का इस्तेमाल करें. नागेंद्र आपसे रिक्वेस्ट है कि हिंदी और इंग्लिश में रहे ताकि लोगों को सुविधा रहे समझने के लिए. Definitely. और मैं कहता हूं कि जो भी इनका अगर आप में कोई भी आपको सवाल है तो आप प्लीज चैट बॉट पे डालें. विल हैप्पी टू आंसर दैट. वो छोटी से छोटी चीजें भी आपको लग रही होगी कंफ्यूज तो प्लीज बताएं. And Nagendra, I think so, over to you. You can take the lead and start the presentation, and hope people should ask question to each other, or if you can interact, that will be great with the help of the chat bot. Okay. Over to you. Thank you so much, Ajay. It's really wonderful to be here with you and your members as well. Hello, everyone. On the behalf of Make My Trip corporate team, we are here with you to present the MyBiz proposition, basically, which is a corporate part of the Make My Trip. With me, Alind is there. Priyanka and Riya are also our team partners. They are also here. So we can start with it. As you know, everyone is aware about the Make My Trip so far.
In 2000, Make My Trip has been started, and everyone is very much familiar these days. It's a very good online portal. People are using it, and we are having more than 30% share of the market in India. So let's continue with the same. MyBiz जो है, it's kind of a product of Make My Trip, जो कि specifically corporates के लिए designed है. So Make My Trip as a whole entity, it's all over, the users are there, and MyBiz we have created in recently last 5 years back. So यहाँ पे काफी हद तक चीजें सिमिलर हैं, लाइक बुकिंग फ्लो सेम है. आपको मोस्ट ऑफ द एलओबीज जो है, लाइक फ्लाइट है, होटल है, बस है, कैब है, वो सब चीजें आपको यहाँ भी देखने को मिलती हैं. कुछ डिफरेंसेस जो है वो कॉर्पोरेट के हिसाब से डिजाइन किए गए हैं, जो मैं आपको आने वाले स्लाइड्स में भी शो करूंगा, एंड आई विल एक्सप्लेन क्या क्या चीजें हैं जो आपके लिए बेनिफिशियरी हैं एज अ कॉर्पोरेट. इंडिविजुअल सभी जानते हैं, सब लोग अपना अपना टिकट्स और फ्लाइट्स, होटल्स, बसेस बुक करते हैं मेक माई ट्रिप पे. एंड कैसे हम माईबिज को अलग देखते हैं और कैसे माईबिज आप लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा अगर आप माईबिज पे आके स्विच करते हैं और अपनी सारी बुकिंग रिक्वायरमेंट जितनी है ट्रैवल से रिलेटेड, चाहे वो फ्लाइट्स हो, होटल्स हो, हाउ यू गाइस कैन यूज इट टू द फुल, और इसमें आपको क्या क्या सहूलियत मिलती है, क्या क्या आपको इसमें बेनिफिट्स मिलते हैं एज अ कॉर्पोरेट. वी गोना डिस्कस विद ऑल दोस थिंग्स वन बाय वन. तो बेसिकली मेक माई ट्रिप जो स्टार्ट हुआ था इन इंडिया, दैट वाज इन ईयर 2000, एंड तब से लेके अब तक वी आर स्टिल द मार्केट लीडर इन द इंडस्ट्री. एंड आफ्टर दैट हमने 2017 में माईबिज लॉन्च किया. एंड जो सबसे बड़ा इशू आता था पहले नॉर्मल मेक माई ट्रिप यूज करते हुए या किसी भी पोर्टल को यूज करते हुए, कि वो इंडिविजुअल बेसिस पे डिजाइन था. एंड नाउ जब अब माईबिज सबसे आया है, सो कुछ जो मेजर कंसर्न्स पहले निकल के आ रहे थे, जो कि कॉर्पोरेट के साथ इश्यूज आते थे, उनको ध्यान में रखते हुए माईबिज को डिजाइन किया गया. सो पहले सबसे बड़ा इशू आता था कि जो जीएसटी इनवॉइसेस होती हैं वो इजीली अवेलेबल नहीं हो पाती, एक सिंगल सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी नहीं था. Here and there people needs to look around with the hotels, with the flights, websites पे जाना, वहां से डाउनलोड करना. सो माईबिज पे सबसे पहला जो टास्क था वो इनवॉइसेस कलेक्शन का था, कि आपको 1 पॉइंट सोल्यूशन इनवॉइसेस का मिले. उसके अलावा रिइंबर्समेंट प्रोसेसेस थे. एम्प्लॉयज पहले जाते थे, एक ऑर्थोडॉक्स तरीका था, एम्प्लॉयज अपना फॉर्म भर के देते थे रिइंबर्समेंट के लिए, फिर फाइनेंस टीम उनको रिइंबर्समेंट प्रोसेस में रिइंबर्स किया करती थी. सो वो अपने आप में एक ऑलरेडी एक लेंदी प्रोसेस हुआ करता था. इसके अलावा बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते थे बिफोर द ऑनलाइन पोर्टल कम्स इनटू प्ले. आप डायरेक्टली होटल्स में जाते थे या एयरलाइन की वेबसाइट पे जाते थे, या मोस्टली लोग एयरपोर्ट काउंटर्स पे जाके टिकट बुक करते थे. तो विजिबिलिटी बहुत कम थी, आपके पास अवेलेबिलिटी और इन्वेंट्री बहुत कम हुआ करती थी, कि जहाँ से आप कंपेयर कर पाएं कि कौन सा होटल मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल है, कौन सा एयरलाइन का कौन सा फेयर मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल है, एज पर माई बजट, एज पर माई कन्वीनियंस, टाइमिंग्स एंड ऑल. सो वो सारे सोल्यूशंस माईबिज में इनबिल्ट किए गए. इसके अलावा मॉडिफिकेशंस ऑफ द फ्लाइट बुकिंग्स बहुत बड़ा फैक्टर हुआ करता था, कि अगर आप फ्लाइट कैंसिल करना चाह रहे हैं, प्लान चेंज हो गया लास्ट मिनट, बिकॉज कॉर्पोरेट्स में होता है, कॉर्पोरेट्स में आपकी मीटिंग्स अलाइन होती हैं, फिर कई बार रीशेड्यूल हो जाती है विद सम अदर रीजंस, मे बी अनअवॉइडेबल रीजंस की वजह से कैंसिल भी हो जाती हैं. सो काफी लॉसेज आपको होटल्स और फ्लाइट बुकिंग्स में होते थे कैंसिलेशंस पे या डेट चेंज पे. उसका सोल्यूशन ध्यान में रखते हुए माईबिज को भी उसी तरह से डिजाइन किया गया, सो दैट मैक्सिमम जो मॉडिफिकेशंस हैं वो आप सिंपली ऐप पे या फिर वेब पोर्टल के थ्रू कर पाए, या फिर सपोर्ट टीम के थ्रू कर पाए. सो विच इज वेरी काइंड ऑफ ए यूनिक प्रपोजिशन फ्रॉम माईबिज, जहाँ पे आपको हैसल फ्री मॉडिफिकेशंस करने को मिलते हैं. इसके अलावा पोस्ट बुकिंग सपोर्ट आज भी दुनिया में बहुत बड़ा चैलेंज है, नॉट जस्ट इन इंडिया. जब भी बुकिंग्स बनाने के बाद आपको कोई मॉडिफिकेशन या कोई हेल्प चाहिए होती है, सपोर्ट चाहिए होता है, सो देयर आर लॉट ऑफ कस्टमर केयर्स इन इंडिया विद डिफरेंट पोर्टल्स, डिफरेंट इंडस्ट्रीज, जहाँ पे वेटिंग टाइम बहुत रहता है, जहाँ पे लोग कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, लाइंस बहुत बिजी रहती हैं. सो वी एज अ माईबिज प्रोग्राम, हमने एक उसका यूनिक सोल्यूशन निकाला. वी प्लान्ड अ डेडिकेटेड टीम, जहाँ पे आपको एक टोल फ्री नंबर मिलता है विच हार्डली गेट्स बिजी, एंड ऑल्सो वहाँ पे आपको कोई भी आईवीआर की तरह ऑटोमेटेड वॉइस सुनने को नहीं मिलता है. यू जस्ट नीड टू एंटर और मेंशन द बुकिंग आईडी, एंड डायरेक्टली आपका जो एजेंट कनेक्ट होता है वो आपके बुकिंग आईडी के बेसिस पे आपके रिजोल्यूशंस पे वर्क करना शुरू कर देता है ऑन द इमीडिएट बेसिस. तो माईबिज को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया. ये जो की बिजनेस ट्रैवल कंसर्न्स मैंने आपको बताए, इन्हीं बेसिस के ऊपर माईबिज की शुरुआत हुई थी.
एंड लेटर ऑन माइबिस को एज अ वन स्टॉप सोल्यूशन माना गया. And currently in the industry, if we talk about the domestic part of like India, यहाँ पे भी हम more than 40% share holder हैं in terms of corporate business and corporate clients. So let's move further. अब आप देखेंगे कि सबसे बड़ी requirements क्या क्या होती हैं corporate की. Corporate के लिए I mean there are different level of corporate depending upon the business volume, their revenue, their work profile and their industry. बट स्टिल चाहे वो एक छोटा कॉर्पोरेट है जहाँ पे हार्डली 5 पीपल आर वर्किंग टुगेदर और जहाँ पे 500 लोगों की कंपनी है, 5000 लोगों की कंपनी है, वो भी एक कॉर्पोरेट है. बीट एमएसएमई, बीट एसएमई, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज और बिग ब्रांड्स कंपनीज, वहाँ पे सबका कॉमन कंसर्न जो है वो यही होते हैं जो मैं आपको आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, कि कैसे हम लोग सेविंग्स कर पाए, कैसे हमारे पास मल्टीपल चॉइस रहे फेयर्स की, होटल्स की, एयरलाइंस की. ऑब्वियसली जब कॉर्पोरेट की बात होती है तो वन पॉइंट सोल्यूशन होना चाहिए, वन पॉइंट कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए कि आप सिंगल पोर्टल से या सिंगल यूजर से काफी चीजें, पॉलिसीज कंट्रोल कर सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं, तो वो सारा कंट्रोल आपके पास होना चाहिए. एश्योरेंस की बात करें तो आपके पास पोस्ट बुकिंग सपोर्ट होना चाहिए, जहाँ पे आपको तुरंत रेजोल्यूशन मिले, तुरंत आपकी क्वेरीज पिकअप हो, उन पे वर्क इमीडिएटली शुरू हो. प्लस आपको जीएसटीएंस का एश्योरेंस मिलना चाहिए कि आपकी जीएसटी इनपुट जो है वो कहीं लॉसेस में ना जाए. अगर आपको इनवॉइसेस नहीं मिल रहे हैं तो आपका जीएसटी इनपुट लॉस भी जाता है. तो बेसिकली वो सारे एश्योरेंस भी हम लोग आपको इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं. एंड सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कन्वीनियंस इज देयर, जहाँ पे आप वन पॉइंट सोल्यूशन है. आप एक ही ऐप पे आपका सारा फ्लो है, बुकिंग फ्लो है, अप्रूवल फ्लो है, पॉलिसी मैट्रिक्स भी है. तो अगर मैं मिड साइज कॉर्पोरेट्स की बात करूँ या बड़े कॉर्पोरेट्स की बात करूँ तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली एक बुकिंग फ्लो चलता है, एक अप्रूवल फ्लो चलता है. बट माइबिज सबके लिए यूनिकली डिजाइंड है, सबके लिए एक जनरलाइज प्लेटफॉर्म है. बट स्टिल यू कैन यूज दिस प्लेटफॉर्म फॉर द स्मॉल कॉर्पोरेट ऑल्सो, जहाँ पे बजट पॉलिसी सेट की जा सकती हैं, जहाँ पे कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज को डेटा को अपलोड किया जा सकता है, जहाँ पे अप्रूवल मैट्रिक्स सेट की जा सकती है. क्योंकि अभी recently I have tried using this in multiple corporate, जहाँ पे अभी तक मेल फ्लो चल रहा है, जहाँ पे अभी तक अप्रूवल के लिए एम्प्लॉय को मेल डालना पड़ता है, एचआर को या फाइनेंस को या अपने रिपोर्टिंग मैनेजर्स को, फिर वहां से रिवर्ट आता है, फिर आप उसको अप्रूवल को लेके आप अपने सेंट्रल डेस्क के पास जाते हैं, ट्रैवल डेस्क के पास जाते हैं, या जो भी कंसर्न पर्सन आपकी बुकिंग्स बनाते हैं वहाँ पे आप उनके पास जाते हैं, फिर वहां से वो बुकिंग बनती है. सो दीज कन्वीनियंट फीचर्स आर ऑलरेडी इनबिल्ट, की जहाँ पे आपको अदर देन माइबिज पोर्टल कहीं भी अलग से लॉगिन करना या अलग से मेल फ्लो करना वो रिक्वायर्ड नहीं है. वंस यू स्टार्टेड यूजिंग इट, आपके लिए सारा एक पॉइंट सोल्यूशन सिर्फ माइबिज पोर्टल पे आता है. एंड वेरी गुड थिंग इज कि आपको इसके लिए अलग से कोई ऐप डाउनलोड नहीं करनी पड़ती है. जो आप मेक माई ट्रिप की ऐप यूज कर रहे हैं उसी की होम स्क्रीन पे राइट हैंड टॉप पे माइबिज का एक टॉगल आता है, आप वहां पे टैप करेंगे तो वो माइबिज की तरफ स्विच हो जाता है. तो इसमें आपको अलग से कोई ऐप भी डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा. तो मूविंग फर्दर, सबसे पहले हम बात करते हैं सेविंग्स की, विच इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑन दी कॉर्पोरेट सेक्टर. कॉर्पोरेट्स का ट्रैवल बहुत होता है, कॉर्पोरेट्स की फ्रीक्वेंट फ्लायर होते हैं, कॉर्पोरेट्स के फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स होते हैं, जो लोग होटल बुकिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है, कैब्स, बसेस, इट्स कंप्लीटली वर्किंग ऑन द ट्रैवल बिजनेस. सो यहाँ पे सबसे पहला फैक्टर आता है सेविंग्स. सेविंग्स कैसे की जा सकती हैं और कितनी हद तक की जा सकती है इन ऑन माइबिज एज कम्पेयर टू अदर B2C पोर्टल्स या अदर ऑनलाइन पोर्टल्स. वील गोना एक्सप्लेन यू लेटर ऑन दिस पार्ट. बट पैसा जो कॉर्पोरेट का सेव होता है उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. लाइक हमारे पास रिड्यूस फ्लाइट मॉडिफिकेशन रेट्स हैं, जहाँ पे आपको अगर डेट चेंज करना है, कैंसिलेशन करने हैं, सो वो भी आपके लास्ट मिनट आई मीन आपका जो एयरपोर्ट पहुंचने का टाइम होता है, स्टैंडर्ड टाइम वी कंसीडर दिस 2 to 3 आवर्स बिफोर द डिपार्चर टाइम, ताकि आप स्मूथली चेक इन कर पाए एयरपोर्ट पे, फ्लाइट बोर्ड कर पाए. तो वी कैप्ट दैट विंडो आल्सो कि आप 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले तक भी अपनी फ्लाइट के कोई भी बुकिंग को कैंसिल या मॉडिफाई कर सकते हैं, विच इज नो वेयर अवेलेबल एज ऑफ नाउ. ज्यादातर जगह आपको मिलेगा अगर फ्री कैंसिलेशन है या रिड्यूस्ड फेयर कैंसिलेशन है, वो भी आपको 3 दिन पहले तक मिलता है. बट इफ यू आर यूजिंग माइबिज, आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप एयरपोर्ट जाते जाते रास्ते में भी अपनी फ्लाइट, अगर प्लान चेंज हुआ है तो फ्लाइट कैंसिल कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं ऑन द लोएस्ट पॉसिबल फेयर्स. इसके अलावा सेकंड फैक्टर इज चीपर फ्लाइट सजेशंस. तो हमारा सिस्टम इस तरह से इनबिल्ट है या डिजाइन किया गया है दैट अगर आप यूज कर रहे हैं माइबिज को, if you have selected some of the flights, so our system will pick it up the suggestion and give a pop-up to you.
कि जहाँ पे आपका फ्लाइट का जो टाइम है उसके हेयर एंड देयर अबाउट 1 आवर बिफोर और 1 आवर लेटर, इफ टाइम इज नॉट अ बिग फैक्टर फॉर यू एट दैट पर्टिकुलर ट्रैवल, तो आपको एक सजेशन दिया जाता है माईविस की तरफ से, पोर्टल की तरफ से एक पॉपअप आएगा कि आपको एक और फ्लाइट अवेलेबल है या 2 और फ्लाइट्स अवेलेबल है जो आपने जो फ्लाइट सेलेक्ट किया है उससे थोड़ा सस्ता है, यू कैन सेव योर मनी। अगर आपको लगता है कि दैट यस इट इज करेक्ट, इट कैन बी डन, तो आप स्विच कर सकते हैं रिकमेंडेड फ्लाइट्स पे एंड अपना काफी पैसा उसमें बचा सकते हैं। एंड इसके अलावा स्पेशल रेट्स जो है माईविस पे आपको देखने को मिलती हैं फ्लाइट्स में भी और होटल्स में भी। फ्लाइट्स में आपको जब सेक्शन आता है तो वहाँ पे दो तरह के फेयर्स आते हैं मोस्टली, रेगुलर फेयर एंड माईविस स्पेशल फेयर। तो जो माईविस स्पेशल फेयर है वी ऑलवेज रिकमेंड दैट टू यूज, क्योंकि वहाँ पे आपको लोअर फेयर कैंसिलेशंस, लोअर फेयर डेट चेंज, फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है एंड वेरी नॉमिनल डिफरेंस वुड बी देयर फ्रॉम रेगुलर फेयर एंड माईविस स्पेशल फेयर डिपेंडिंग अपॉन द सीट फिलिंग कैपेसिटी ऑफ द एयरलाइंस। तो स्पेशल रेट्स हम लोगों ने लिए हुए हैं एयरलाइन से और वही आपको डायरेक्टली हाईलाइट करते हैं। द मोस्ट थिंग इज हम लोग प्रीटी ट्रांसपेरेंट इन दी पॉलिसीज की जो एयरलाइन ने फेयर पास ऑन किया है वही फेयर आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको सेविंग रिपोर्ट्स डाउनलोड करने को मिलती है इसी पोर्टल से, जहाँ से आपको पूरा क्लैरिटी हो जाती है कि आपने ये सारे फैक्टर्स यूज करे हैं तो आपको कितना सेविंग्स आपको मिला है। सो वो MIS पूरा आप अपने सिस्टम में ही देख सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब इस सारे फैक्टर्स के बेस पे सर्वे किया गया सो इट वाज लाइक दैट कि 18 to 20% जो है कंपनीज जो कॉर्पोरेट्स हैं वो सेव कर पा रहे हैं अपने एनुअल बजट पे। जितना भी उनका एनुअल बजट है ट्रैवल को लेके, अपनी कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को ट्रैवल को लेके, वहाँ पे 18% तक की सेविंग आप आराम से कर पा रहे हैं। यू कैन एक्सीड टू दिस नंबर ऑल्सो विद यूजिंग मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल इन दी पोर्टल। इफ आई गो फर्दर तो यहाँ पे कंट्रोल की मैं बात करता हूँ। कंट्रोल आपके पास जो आता है इस टूल को यूज करने में, इफ योर एम्प्लॉइज आर यूजिंग माईविस प्रोग्राम और आप अलग अपने एम्प्लॉइज के लिए माईविस के थ्रू बुक कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो एज अ कॉर्पोरेट आपको मिलती हैं। अगर आप HRMS टूल यूज कर रहे हैं अपने एम्प्लॉइज के लिए, ऑनलाइन HRMS इंटीग्रेशन आपको पॉसिबल है। इसके अलावा पॉलिसी मैप पे आप तुरंत कर सकते हैं, जो भी आपको बजट पॉलिसी लगानी है, जो भी आपको बुकिंग विंडो पॉलिसी लगानी है, जो भी अप्रूवल पॉलिसी लगानी है, वी हैव द मल्टीपल अप्रूवल पॉलिसी अवेलेबल। आप अप टू 5 मैनेजर्स तक का भी अप्रूवल पॉलिसी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इफ एम्प्लॉय वांट्स टू ट्रैवल एंड ही नीड्स टू टेक सम अप्रूवल फॉर सिंगल पर्सन, ही कैन टेक इट फ्रॉम दैट डायरेक्टली फ्रॉम द पोर्टल। या फिर अगर आप कहते हैं कि नहीं वी वांट टू हैव 2 मैनेजर्स टू अप्रूव, वी वांट टू हैव 3 मैनेजर्स टू अप्रूव, तो वो भी वहाँ पे सेट किया जा सकता है, कस्टमाइज हो सकता है। तो कॉर्पोरेट टू कॉर्पोरेट आप किसी भी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर ओन बिजनेस वॉल्यूम एंड डिपेंडिंग अपॉन योर ओन बिजनेस रिक्वायरमेंट। सो पूरा कस्टमाइजेशन यहाँ पे अवेलेबल है। मल्टी प्लेटफॉर्म इंस्टेंट अप्रूवल फ्लो का मैं वो जो जिक्र कर रहा था वो यही है कि अगर आप सपोज इन पॉलिसी है, आपके ट्रैवल प्लान जो है वो इन पॉलिसी जा रहे हैं बट आपको अप्रूवल फिर भी चाहिए, तो इन पॉलिसी पे भी आप अप्रूवल सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहते हैं कि नहीं, अगर इन पॉलिसी एम्प्लॉय ट्रैवल कर रहा है तो उनका अप्रूवल उनके अप्रूविंग मैनेजर दे रहे हैं, और अगर वो आउट ऑफ पॉलिसी जा रहे हैं, बजट एक्सीड कर रहे हैं या बुकिंग विंडो एक्सीड कर रहे हैं, तो उनके जो और सुपर सीनियर्स हैं, could be MDs, could be CFOs, could be CEOs, could be financial heads as well. So आप वहाँ पे कस्टमाइज्ड कर सकते हैं, आप सेकंड अप्रूवल उनका भी लगा सकते हैं। So that's what we call as multi-platform instant approval flow. और ये जो अप्रूवल होते हैं ये आपको जो अप्रूविंग मैनेजर्स हैं उनके पास टेक्स्ट, व्हाट्सएप, ईमेल सब पे आते हैं, स्पेशली अलॉन्ग विद दी ऐप एंड दी वेब पोर्टल। तो किसी को भी अलग से लॉग इन करने की जरूरत नहीं है। जो भी अप्रूविंग मैनेजर्स हैं दे कैन सिंपली चेक देयर फोन्स, उनके पास अप्रूवल का एक मेल आता है, एक व्हाट्सएप का पॉपअप आता है, वो डायरेक्टली वहां से अप्रूव कर सकते हैं। सो इट्स अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ फ्लो कि जहाँ पे आपको कोई भी हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं कि आपको पोर्टल खोलना पड़ेगा या ऐप खोलनी पड़ेगी तब अप्रूव करना पड़ेगा। नो, you can simply check your text message, check your WhatsApp message or email, and I know, I believe आज की डेट में सभी इंडस्ट्रीज में it's very handy to use smartphones, वहाँ पे आपको सब चीजें मिल जाती है। So very easily you can approve your employees request also. लास्ट आता है एनालिटिक्स डैशबोर्ड विद रियल टाइम रिपोर्टिंग। तो जो भी आपकी बुकिंग्स बन रही हैं, I'll come to the live product of this MyBiz portal later on of this presentation within 6 minutes. तो वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा एक डैशबोर्ड मिलता है एडमिन को, जो भी आपके एडमिन सेटिंग, जिनके पास भी एडमिन राइट्स असाइन होंगे इस MyBiz पोर्टल पे, जो भी आपका एडमिन रहेगा, चाहे वो फाइनेंस पर्सन होते हैं, HRs हो सकते हैं, CEOs हो सकते हैं, CFOs हो सकते हैं, तो those persons have a direct access for the dashboard, जहाँ पे आपको हर चीज का रियल टाइम रिपोर्टिंग मिल रहा है। आपका फ्लाइट रिपोर्ट मिलता है, आपका होटल रिपोर्ट मिलता है, बस रिपोर्ट मिलता है, कैब रिपोर्ट मिलता है,
इसके अलावा अगर आप माईबिज वॉलेट यूज कर रहे हैं, आपको पेमेंट का पूरा सोर्स का वॉलेट का रिपोर्ट मिलता है। सो इट्स क्वाइट हैंडी कि आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ट्रैवल हो रहा है, आप उसकी डायरेक्ट रिपोर्टिंग वहां से देख सकते हैं। किसने बुक किया, किसके लिए बुक किया, कितने दिनों के लिए बुक किया, क्या उसमें जीएसटी क्लेमेबल अमाउंट था, क्या जीएसटी पिक हुआ या नहीं हुआ, अगर आपके पास मल्टीपल जीएसटीएन हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या क्या है, वो सारे आपको एनालिटिक डैशबोर्ड में दिखने को मिल जाते हैं। समरी वाइज आपको होम पेज पे मिल जाता है, और डिटेल में जाना चाहें तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस आपको कहीं भी मैनुअल डेटा एंट्री करने की जरूरत नहीं है, जो कि अभी तक ट्रेंड में होता आ रहा है कि कैसे लोग फ्लाइट रिपोर्ट उठाते थे या वाउचर्स उठाते थे, बोर्डिंग पासेस उठाते थे इन द प्रीवियस ईयर्स, और फिर एक एक एंट्री मैनुअली करते थे। वो सब करने की आपको यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। इट्स वेरी हैंडफुल, आपको सारा डेटा इनबिल्ट होके मिलता है और ऑटोमेटिकली वो रिपोर्ट्स में कन्वर्ट होता है। यू जस्ट नीड टू क्लिक एंड डाउनलोड वॉट एवर रिपोर्ट यू रिक्वायर। So it's very helpful to cut down your manual efforts, and it saves a lot of time for a HR and finance person also, finance team also, कि वो सारा reconciliation जो करना चाहते हैं, अपनी accounting करना चाहते हैं year end पे या quarter end पे, वो वहाँ पे आराम से उनको reports के through easily करने को मिलता है। Convenience की अगर बात की जाए, so obviously when it's an online platform तो आपकी convenience already बढ़ी हुई है। With MyBiz how it get more increased, I tell you कि यहाँ पे आप जब एम्प्लॉय डेटा अपलोड कर लेते हैं तो पूरा पर्सनलाइज बुकिंग एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता है। अगर आप रेगुलर किसी होटल में बुकिंग्स कर रहे हैं तो वो उसको भी आप अपनी लिस्ट में ऐड ऑन कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली वो होटल आपके सामने, जब आप उस सिटी का होटल सर्च करते हैं तो सबसे प्रायोरिटी पे आपका वो होटल आपको दिखाई देने लगता है। इसके अलावा सभी प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है इसकी ऐप, चाहे वो एंड्रॉइड हो, iOS हो, या आप डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, तो इजीली इट इज अवेलेबल ऑन दैट। एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि आपको अलग से कोई ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आप मेक माई ट्रिप की ऐप को ही स्विच करेंगे माईबिज पे, वो ऑटोमेटिकली स्विच हो जाता है। यहाँ पे मल्टीफोल्ड ऑफ कम्युनिकेशंस हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितने भी अप्रूवल फ्लो हैं, जो एम्प्लॉय अप्रूवल के लिए मेल डालता था, अब वो सिंपली अपनी बुकिंग पूरी कंप्लीट करके रिक्वेस्ट रेज करता है, और वो अप्रूविंग रिक्वेस्ट उनके मैनेजर के पास फोन पे चली जाती है। तो मेल्स, टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप पे जाता है सारा। आपका जो बुकिंग आईडीज हैं, बुकिंग का वाउचर्स है, टिकट्स हैं, इनवॉइसेस हैं, वो आपको ईमेल्स पे आ जाती हैं, पोर्टल पे आ जाती हैं, इनफैक्ट आपके व्हाट्सएप पे भी आ जाती हैं। जीएसटीएन फ्लो इंटीग्रेटेड है इस पोर्टल के अंदर। इसका ये मतलब होता है कि अगर आपके पास सपोज किसी कॉर्पोरेट के पास मल्टीपल स्टेट के जीएसटीएन है, उनके बहुत सारे ऑफिसेज अक्रॉस इंडिया हैं। सो होता क्या है, एयरलाइन के जीएसटी इनपुट तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, किसी भी जीएसटीएन पे ले सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एज पर द जीएसटीएन लॉज। बट होटल के केस में एक कंडीशन आती है कि अगर आपके पास पर्टिकुलर स्टेट का जीएसटीएन है और आप उसी स्टेट में होटल बुक कर रहे हैं, देन ओनली यू विल बी एलिजिबल टू क्लेम दैट जीएसटीएन इनपुट। सो अगर आपने अपने माईबिज पोर्टल पे, अपने अकाउंट पे मल्टीपल जीएसटीएन अपलोड कर रखे हैं, तो माईबिज पोर्टल इज डिजाइन्ड इन सच अ वे कि वो उसी स्टेट का जीएसटीएन पिक करेगा जिस स्टेट का होटल आप लोग बुक कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई स्टेट है जहाँ पे आपका जीएसटीएन नहीं है, आपने अपलोड नहीं किया है, सो बाय डिफॉल्ट वो आपका हेडक्वार्टर जीएसटीएन पिक करेगा। सो आप वहाँ पे हेडक्वार्टर जीएसटीएन अपना जो भी आपका एचओ है, हेड ऑफिस है, जहाँ पे आपका कॉस्ट सेंटर है, उसको अगर मार्क करते हैं तो वही जीएसटीएन पिक होगा, अगर उस स्टेट का जीएसटीएन आपके पास नहीं है। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग और गुड फीचर कि अगर आपके पास मोर देन 1-2 जीएसटीएन हैं तो सारे जीएसटीएन जितने भी हैं वो आप अपलोड कीजिए और टेक अ बेनिफिट, क्योंकि होटल का जो जीएसटीएन अमाउंट है वो एटलीस्ट 12% टू 18% है। आई होप एवरीवन नोज अबाउट इट। सो 12% से 18% की सेविंग तो सीधे सीधे आपकी यही हो जाती है जब आप उसका जीएसटीएन क्लेम इनपुट लेते हैं, ओवर दैन अबव जो भी आपको बेनिफिट्स माईबिज पे मिल रहे हैं। सिंगल साइन ऑन इज बेसिकली एसएसओ। सो हमारे यहाँ पे माईबिज प्लेटफॉर्म को एसएसओ इंटीग्रेशन के हिसाब से भी बनाया गया है। अगर किसी कॉर्पोरेट में एसएसओ लॉगिन यूज हो रहा है, एसएसओ बेसिकली होता है कि जब आप एक सिंगल साइन ऑन एंट्री यूज करते हैं अपने मल्टीपल टूल्स के लिए, चाहे वो आपका एचआरएमएस है, चाहे वो एक्सपेंस मैनेजमेंट है, आपकी अटेंडेंस का सॉफ्टवेयर है आपके ऑफिस के अंदर, अगर आपका सिंगल एसएसओ लॉगिन आईडी है तो उसको भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो आपको मल्टीपल लॉगिन्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मल्टीपल डेटा अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम लॉगिन के साथ आप अपने माईबिज प्लेटफॉर्म को भी यूज कर सकते हैं। So this is all about the convenience, how you use it, and after that we'll coming to the choice part. So choice is very important कि जहाँ पे आपको अपनी flexibility चाहिए टाइमिंग के हिसाब से, डिस्टेंस के हिसाब से कि आपको कितना ट्रैवल करना है, होटल कितना पास कितना दूर आपको चूज करना है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी इन्वेंट्री हमारे पास अवेलेबल है इंडिया के अंदर होटल्स में, विच आई टॉक अबाउट कि मेक माई ट्रिप B2C या नॉर्मल पोर्टल पे आपको लैक्स ऑफ इन्वेंट्रीज देखने को मिलेंगी।
उनको हमने शॉर्टलिस्ट करके एज पर द कॉर्पोरेट रिक्वायरमेंट कि उनका कॉर्पोरेट रिक्वायरमेंट एज इन लोकेशन वाइज, उनकी सर्विसेज वाइज, उनकी रेटिंग्स वाइज हमने शॉर्टलिस्ट करके उसको माईविज एश्योर्ड कैटेगरी में लिस्ट किया है. Still on the MyBiz platform, you can see more than 70,000 hotel inventories there, out of which 75 to 80% hotels are coming under MyBiz Assured Property, जहाँ पे हम आपको GSTN का 100% इंश्योरेंस दे रहे हैं. इसके अलावा अगर एयरलाइंस की मैं बात करूँ, एयरलाइंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मल्टी फेयर ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, एज इन लाइक MyBiz स्पेशल फेयर, रेगुलर फेयर, विद यू कैन चूज एंड एज पर योर कन्वीनियंस आप MyBiz स्पेशल फेयर चूज कर सकते हैं, आप रेगुलर फेयर भी चूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कौन सा फेयर सूट कर रहा है, कौन सी एयरलाइन सूट कर रही है. तो ऑल द ऑप्शंस आर अवेलेबल ऑन दी होम पेज ऑफ द एयरलाइंस. रियल टाइम प्राइसिंग एंड इन्वेंटरी विजिबिलिटी इज बेसिकली, तो बेसिकली ये होता है कि अगर किसी एयरलाइन में, फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट पुटिंग अ केस, लास्ट की कोई एक सीट बची है या 2 सीट बची है, एंड क्योंकि पूरे इंडिया से या लोग ऑनलाइन उसको सर्च कर रहे होते हैं, कई बार वो सीट पिक हो जाती है और वो अवेलेबल नहीं होती. तो हमारा माईविज प्लेटफॉर्म जो है वो इतना इंटीग्रेटेड है कि अगर वो लास्ट सीट भी अवेलेबल है और किसी ने पिक नहीं किया है तो वो भी आपको वहाँ पे दिखाएगा. कई बार पोर्टल्स पे वो विजिबल नहीं होता है. तो वी कैन अश्योर यू कि बिल्कुल रियल टाइम जो इन्वेंट्री एयरलाइन शो कर रहा है या होटल्स अपने रूम्स की इन्वेंट्री शो कर रहा है माईविज प्लेटफॉर्म पे, वो रियल टाइम पे शो करेगा. ऐसा नहीं होगा कि आप बुक करने जा रहे हैं, पता चला पीछे से वो बुक हो गया और आपकी बुकिंग फेल हो गई. So it will be like कि real time inventory would be there and transparency is also there. Transparency as in we are not charging any convenience fee on the hotels. जो भी hotel pricing है वो hotel के through pass on की जा रही है, वही payment आपको वहाँ पे करना है. Along with that, airlines की अगर मैं बात करूँ तो airlines का भी direct pricing जो है वो आपको MyBiz पे देखने को मिल रहा है. We are charging a very small amount of convenience fee on that airline costing. This is hardly 100-150 rupees. जो कि आपको पे करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ बिलिंग. तो ऑल द टाइम यू विल बी एबल टू सी द रियल टाइम पिक्चर जो मार्केट में अवेलेबल है, चाहे वो सीट्स हैं, चाहे वो होटल रूम्स हैं, एंड इन्वेंट्री विजिबिलिटी आपको क्लियर रहती है. इफ आई टॉक अबाउट द एश्योरेंस, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि यहाँ पे आपको पोस्ट सेल सपोर्ट की और 100% जीएसटी इनवॉइस की हम लोग गारंटी दे रहे हैं MyBiz एश्योर्ड होटल्स पे. अगर आपको होटल जीएसटी इनवॉइस देने के लिए मना करता है, सो यू कैन क्लेम टू मेक माई ट्रिप कि होटल ने आपको मना किया है, and ask them to collect from the MMT. So our MMT hotel team will provide you the GST invoice on MyBiz Assured hotels. अगर इन केस अगर MyBiz Assured hotels की GST invoice नहीं मिल पाती है किसी भी रीजन की वजह से, in fact 7 to 10 working days में आपको invoice of MyBiz team नहीं दे पाती है, so we are ready to give you that refund of the GST amount in that bill. जो भी उस होटल का GST अमाउंट चार्ज हुआ है, एंड इफ वी आर अनेबल टू प्रोवाइड द GST, ऐसा होता नहीं है, 99.9% we are ready to give you the invoices if hotel is not giving at the time of checkout. Still अगर मैं 0.01% केस की बात भी करूं, so we are happily ready to give you the GST amount. So we don't want you to lose your money and you can save your money through that amount as well. 24/7 प्रायोरिटी सपोर्ट हमारे पास है, डेडिकेटेडली MyBiz सपोर्ट हमारे पास है फॉर द कॉर्पोरेट्स. आपको नॉर्मल मेक माई ट्रिप के कस्टमर केयर पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको वहाँ पे IVR सिस्टम पे कॉल करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे एक डेडिकेटेड सपोर्ट टीम आपको मिलती है, उसका डायरेक्ट नंबर मिलता है, डायरेक्ट ईमेल आईडी मिलती है, एंड विद इन द 24 to 48 आवर्स आपकी क्वेरी पिकड अप हो जाती है. इफ यू आर डूइंग द कॉल, इमीडिएटली आपका कॉल विद इन 10 सेकंड्स पिकअप हो जाता है. अगर इन केस आपका कॉल कनेक्ट हो जाता है और बीच में कॉल किसी भी नेटवर्क इशू की वजह से डिस्कनेक्ट भी हो जाता है, तो वी विल मेक श्योर कि आपको वापस से कॉल बैक आएगा. So you will get a call back again if the call get disconnected in between the call duration. So if I talk about last point is my safety. So basically जितने भी flights, hotels और cabs की बात की जाए, so we have a very good tie-up with the vendors. We maintain the clarity in the business, जहाँ पे आपको पूरा safety, trained staff, sanitized environment देखने को मिलता है. Especially during the COVID time, we focus more on this. जितने भी आपको होटल रूम्स मिलते हैं, जितने भी आपको फ्लाइट का जो भी एयरलाइंस की जितने भी गाइडलाइंस हैं वो स्ट्रिक्टली फॉलो हो, एंड सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास पास ऑन हो ड्यूरिंग द बुकिंग वाउचर्स. जब भी आप बुकिंग बनाते हैं तो बुकिंग वाउचर्स पे, चाहे वो होटल का फ्लाइट हो, होटल का हो, फ्लाइट का हो, कैब्स का हो, बसेस का हो, आपको सारे इंस्ट्रक्शंस क्लैरिटी के साथ आपके वाउचर पे देखने को मिलते हैं. और हर वाउचर पे आपको सपोर्ट की डिटेल्स भी मिलती है अलॉन्ग विद दी वेंडर डिटेल्स ऑल्सो. अगर आपने एयरलाइन बुक किया है तो आपको MyBiz सपोर्ट के साथ साथ एयरलाइन के भी सपोर्ट की डिटेल्स वहीं पे देखने को मिलती है वाउचर पे. होटल बुक किया है तो होटल के कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मिलते हैं.
तो एवरीथिंग विल बी ऑन द क्लियर प्लेटफॉर्म। जब भी आप MyWish से बुकिंग बनाते हैं तो सारी चीजें आपको सामने देखने को मिलेंगी। Basically, if I summarize this thing as a whole, तो यहाँ पे आपको डोमेस्टिक इंटरनेशनल फ्लाइट्स, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल होटल्स, buses, cabs is basically the airport transfers, intercity transfers, and the hourly rental basis पे आपको cabs यहाँ पे देखने को मिलती हैं, which we have tied up with different vendors across India, not with Ola, Uber, private taxi vendors are there, और उनके साथ हमारी assurance भी है, तो वो भी आप बुक कर सकते हैं। इसके अलावा जो ऑफलाइन सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास पूरी माइस टीम है, एक कॉर्पोरेट के लिए डेडिकेटेड माइस टीम है। माइस टीम इज बेसिकली वर्किंग ऑन द ग्रुप इंक्वायरीज, जहाँ पे आपको कोई इवेंट अपना ऑर्गेनाइज करवाना है, जहाँ पे आपको मल्टीपल लोगों को ट्रैवल कराना है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, कोई भी किसी तरह का कॉन्फ्रेंस कराना है, कोई भी कॉर्पोरेट इवेंट कराना है, वहाँ पे आपको माइस टीम हमारी असिस्ट करती है। यू जस्ट नीड टू पुट अ क्वेरी ऑन माइस लिंक, वहाँ पे आप अपनी क्वेरी पुट अप करते हैं, विद इन 24 आवर्स आपको कनेक्ट किया जाता है और आपकी क्वेरीज पे वर्क स्टार्ट किया जाता है। सेम माइस टीम आपके साथ वेन्यूज को लेके, या वीजा की टीम है हमारे पास जो वीजा आपके लिए प्रोक्योर करती है, अगर आपकी कोई भी इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए वीजा रिक्वायरमेंट्स हैं, सो वी डू हैव दिस सेपरेट वीजा टीम ऑल्सो। तो आप उनके साथ वीजा के साथ जितनी सर्विसेज रिक्वायर्ड है वो भी आप ले सकते हैं, वीजा एंड फॉरेक्स। इसके अलावा गिफ्ट कार्ड्स आर आल्सो अवेलेबल विद अस, जहाँ पे आपको अगर कोई भी इवेंट में अपने एम्प्लॉयज को या अपने क्लाइंट्स को, अपने गेस्ट को गिफ्ट्स देने हैं, सो वी डू हैव द गिफ्ट कार्ड फीचर ऑल्सो, वो भी आप हमसे पिक कर सकते हैं और अपने एम्प्लॉयज को या अपने क्लाइंट्स को या अपने पार्टनर्स को दे सकते हैं। So this is basically all about the MyWish, a summary which I told you about. If you can see on the screen, एक हेल्पलाइन नंबर है which I was talking about, and this very simple email ID mysupport@makemytrip.com। ये 24/7 हमारा MyWish का dedicated support है। You can call them, you can mail them, and within 24 hours your queries will be picked and will be answered. So this is all about a summarized platform of the MyWish. Just allow me a moment to start the live demo of a product. Before that, I would like to know if anyone has a queries. Please type on the chat box, and we'll answer that as well. Nagendra, just to add this, I think so. Can you highlight this? What are the benefits that you are planning to give during this Tritiya? Because लोगों को थोड़ा और है कि benefits क्या क्या है, अगर मैं बुक कर रहा हूँ मेरे cancellations क्या होंगे, क्योंकि क्या है बहुत लोग होते हैं कि आज बुक कर रहे हैं और कैंसलेशन कर रहे हैं, what are the charges? Let's be very on a transparent side कि लोग जानना चाह रहे हैं। किसी ने क्वेरी चैट बोर्ड पे डाली है कि मुझे 4 पॉइंट्स वापस चाहिए, उन्होंने कैन यू एक्सप्लेन द ऑल द 4 पॉइंट्स अगेन? मिस्टर चिराग मालविया, थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन सर। वी आर जस्ट I'll cover these points, अजय। मैं अभी वहीं लाइव प्रोडक्ट पे ही आ रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं जितनी डिफरेंसेस हैं, जो बेनिफिट्स हैं MyWish पे, which I give you the summary as of now, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ just in a minute on the other side of the live demo. Let me just quickly go through the, just give me a minute, I can cover this chat box, जो query है, I'll ask for that. Meanwhile, members, I would rather appreciate कि अगर आपके कोई experience हैं जो आप share कर सकें, so that we can understand आप क्या problems face करते हैं, and accordingly we can work upon it or we can clarify if we have a solution for that on our platform. Nagendra, you can start the demo. I think so people will understand better जब वो देखेंगे कि लाइव में कैसे वो बुकिंग करते हैं और क्या उनको फायदा है। नागेंद्र जी, किसी का सवाल है एलवीज का? We are just starting it as just a minute. Okay, लेकिन एक क्वेरी जस्ट नाउ आई है, इज देयर इज एनी पॉसिबिलिटी टू अपडेट द बुकिंग पर्सन्स नेम्स, डिटेल्स एक्सेट्रा पोस्ट बुकिंग? So about this query, hotels के अंदर maximum feasibility होती है कि पोस्ट बुकिंग में अगर आपका कोई भी नेम चेंज करेक्शन है, तो which is feasible, 95% केसेस में होटल अलाउ करते हैं, एंड वी डू दैट। आप हमारे सपोर्ट टीम के थ्रू ये नेम चेंज या नेम करेक्शन करवा सकते हैं।
एयरलाइंस के लिए इट्स वेरी स्पेसिफिक, और जो DGCA की गाइडलाइंस है, आई वुड लाइक टू आंसर यू कि up to 3 alphabets can be modified in the airline booking, but that to take in consideration of the airline कि वहाँ पे नेम का प्रोनाउंसिएशन चेंज नहीं होना चाहिए. सपोज विनीत किसी का नाम है, VINIT आपने गलती से टाइप कर दिया एंड यू जस्ट वांट टू चेंज इट टू VINEET, दैट इज पॉसिबल. कुछ एयरलाइंस उस पर कुछ चार्जेस भी लगाती हैं, तो वो आपको पे करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ करेक्शन. अदरवाइज नेम चेंज नहीं हो सकता एयरलाइंस में, विच इज हाईली रिस्ट्रिक्टेड. जेंडर चेंज नहीं हो सकता. सैल्यूटेशन यस इट कैन बी चेंज्ड. नेम एज आई मेंशन्ड कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपका चेंज नहीं हो सकता. आप कोई भी नेम का करेक्शन करवा सकते हैं, दैट इज लिमिटेड टू अप टू 3 अल्फाबेट्स. होटल्स के अंदर यस इट इज पॉसिबल. डिस्क्रिप्शन एट द एंड ऑफ द डे वेंडर के पास होता है, चाहे वो एयरलाइंस हो या होटल हो. So once the hotel get approved, and they will change the name and get you the revised voucher through our support team. I hope I covered this answer. Any other thing, any clarification on this if required? LV? Shamal, you want to ask something to Nagendra? Yeah, hi Nagendra, this is Shamal here. So Yeah, I hi, head the IIJS show. Now, my request to you is because a lot of people probably have also joined a little late, and most of the people are, especially from our industry, I think they would not be clearly aware of what are the good benefits that they can enjoy with this partnership. So if you can just stress quickly in a very summary format on what are the benefits in terms of flight bookings. So like we have facilities where people can book now and they can cancel them at a very reasonable rate, but at least their basic inventories are done so that they don't have to face the increased price on the airlines. That's number one part of it. And what are the quick soft benefits that the airlines give in terms of seat selections or meals? If you could please add a little information on this, people will be more clear and they can use this in a better way. Thanks. Okay, Shamal, I have explained those benefits. Now I'm coming on the live portal of the MyBiz only. So I'm going to explain how you can see the benefits of MyBiz while booking a flight booking or a hotel booking. I'm covering that shortly only in this live demo. All right, thanks. Okay, so this is, I believe the screen is visible to everyone. This is a MyBiz portal homepage where you can see kind of a similar interface which MakeMyTrip normal has. The difference, how you differentiate between a normal MakeMyTrip and MyBiz platform is, यहाँ पे आपको जो color tone देखने को मिल रहा है, highlighted color tone, that is of kind of a orange, and the background is. Nagendra, sorry to interrupt. Could you please help in switching from MMT to MyBiz so that they can understand? Yeah, that? we are coming on that only. Yeah. So basically, you can see I tell you the difference is basically normal जो MakeMyTrip है, वो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, जहाँ पे आप जो सारे LOBs आप देख रहे हैं, यही almost सारे वहाँ पे भी available हैं, except few. The basic difference, how you differentiate between a MakeMyTrip, जब भी आप booking बनाने जा रहे हैं, and on the first note, आप कैसे differentiate कर सकते हैं, which is the color tone. You can see normal MakeMyTrip is having the blue highlights, and on MyBiz, if you switch, it will give you the orange highlights over there. So this is the basic difference जहाँ पे आप उसको चेक कर सकते हैं. कई बार होता है कि हम जल्दी में बुकिंग बनाने जा रहे होते हैं और MyBiz की जगह MakeMyTrip पे बुकिंग. बट आपकी लोगो भी चेंज हो जाती है, MakeMyTrip से MyBiz में आ जाते हैं. Yes, absolutely. So MyBiz comes into play MakeMyTrip के प्रोडक्ट के तौर पे वहाँ पे आपको MMT देखने को मिलता है. Similarly, जब आपके वाउचर्स आते हैं, इनवॉइसेस आते हैं, वहाँ पे भी आपको MyBiz देखने को मिलता है. So this is about the flight booking flow. Flight, hotels, cabs, buses, rest of the things are available. Trains अभी in product development है. ये आपको आने वाले टाइम में लाइव मिल जाएगा. अभी it is not live. So I'm covering the live portions like flight, hotels, cabs and buses over this platform. So basically बहुत सिंपल फ्लो है, जैसे हम लोग करते आ रहे हैं काफी टाइम से. आपको डेस्टिनेशंस अपने डालने हैं, आपको अपना डेट ऑफ ट्रैवल डालना है, उसके अलावा आप कितने पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं, आप किसी के लिए बुक करना चाह रहे हैं, उनका नाम यहाँ पे आपको डालना पड़ता है. तो बेसिकली मैं आपको एक बहुत यूनिक चीज बता देता हूँ. सबसे पहले, जब भी आप फ्लाइट, होटल बुक कर रहे हैं, कैब बुक कर रहे हैं, कुछ भी बुक कर रहे हैं MyBiz के थ्रू, तो आपको इनिशियल्स अपने टाइप करने पड़ते हैं. सपोज इफ आई एम बुकिंग फॉर माई सेल्फ,
आई जस्ट टाइप माई इनिशियल्स। क्योंकि मेरा डेटा ऑलरेडी अपलोडेड है तो मुझे कहीं भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मुझे मैनुअली लास्ट में सारा डेटा डालना पड़ेगा। तो वी ऑलवेज रिकमेंड, जब भी आप माईबेस पे लॉग इन करते हैं, अपना अकाउंट बनाते हैं, तो जितने आपके एम्प्लॉयज ट्रैवल करते हैं उनका डेटा आप इनिशियल लेवल पे अपलोड कर ले, ताकि आपको बार बार जब उनकी बुकिंग्स बनानी पड़ेंगी या उनको खुद को अपनी बुकिंग्स बनानी पड़ेंगी तो उनको सारा डेटा मैनुअली टाइप करने की जरूरत है। नागेंद्र, आप साइन अप फ्लो भी बता सकते हैं प्लीज? Yes, we'll do that. So यहाँ पे I'll just selected my name and then I'll go for the search. So when you click on the search, जितने भी multiple options available हैं within the sectors, वो सारे available real time inventories आपको देखने को मिलती हैं। जितनी एयरलाइंस ऑपरेट कर रही हैं सबकी अवेलेबिलिटी, सबके फेयर्स, उनका फिल्टर्स अराउंड दी नॉन स्टॉप एंड दी वन स्टॉप फ्लाइट्स, सारे फैक्टर्स आपको यहाँ पे सामने देखने को मिलेंगे। और इसमें से आपका जो भी कंफर्टेबल या कन्वीनियंट टाइम है, कन्वीनियंट फ्लाइट है, वो आप वहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो एज यू कैन सी यहाँ पे सारे पॉपुलर फिल्टर्स हैं। उसके अलावा आप टाइमिंग चूज कर सकते हैं, किस टाइमिंग में आपको ट्रैवल करना है, कौन सी एयरलाइन में ट्रैवल करना है, आप पर्टिकुलरली उसका फिल्टर लगा सकते हैं। एंड किस तरह का फेयर टाइप आप देखना चाहते हैं, वो फेयर टाइप का फिल्टर भी आप लगा सकते हैं। तो मेजरली इफ आई से अबाउट, लाइक यू जस्ट गो क्लिक एंड हियर व्यू प्राइजेस। तो जो बेनिफिट्स की हम बात कर रहे थे, अभी शामिल ने भी वो पॉइंट रेज किया था। सो देयर कम्स द बेनिफिट्स कि आप यहाँ देखेंगे कि रेगुलर फेयर जो है उसके अंदर कैंसिलेशन फीस और डेट चेंज फीस आर वेरी हाई। ये वो रेगुलर फेयर्स होते हैं जो कि नॉन रिफंडेबल होते हैं। यहाँ पे आपको मील्स भी चार्जेबल मिलती हैं, सीट सिलेक्शन भी चार्जेबल मिलता है। इसके अलावा जब आप कंपेयर करते हैं माईबे स्पेशल फेयर से, सो बहुत थोड़े से डिफरेंस में, आई एम नॉट सेइंग कि ये फेयर हमेशा, माईबे स्पेशल फेयर हमेशा हाई होता है। ये इसका टेंडेंसी जो फेयर कॉस्टिंग का है, ये डिपेंड करता है सीट फिलिंग कैपेसिटी ऑफ द एयरलाइंस पे। जिस भी कैटेगरी का सीट फिल होता जाता है उसका फेयर ड्यू टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एयरलाइंस बढ़ाती चली जाती है। तो आपको कई बार ऐसा भी देखने को मिलेगा कि माईबे स्पेशल फेयर या तो इसके बराबर होता है या इससे कम भी होता है। बट यहाँ पे जो बेनिफिट्स है मेजरली, वो आप देख सकते हैं कि माईबे स्पेशल फेयर गो फर्स्ट की एयरलाइंस पे 99 रुपीज का कैंसिलेशन चार्जेस है, डेट चेंज अलाउड है फ्री ऑफ कॉस्ट, कॉम्प्लीमेंट्री मील अवेलेबल है और फ्री सीट्स भी अवेलेबल है। तो ऑब्वियसली बीइंग अ कॉर्पोरेट, मैं चाहूंगा कि मेरा पैसा सेव हो ऑन द होल। पूरे साल की कैलकुलेशन में अगर हम जाते हैं, पूरे साल का जो ट्रैवल एक कॉर्पोरेट प्लान करता है अपने लिए, तो वहां पे ये आपको देखने को मिलेगा कि इनिशियली हो सकता है आपको लगे कि नहीं यार रेगुलर फेयर कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सस्ता आ रहा है, हमारी कैलकुलेशन पॉसिबिलिटी भी बहुत कम है। बट ओवरऑल ऑन द स्टडी इट कम्स आउट कि जहाँ पे आपने 5 बुकिंग्स विदाउट कैंसिलेशन ट्रैवल कर लिया, बट छठी बुकिंग करने का जब आप गए और वो कैंसिल हो गई किसी भी रीजन की वजह से, उसमें आपकी पिछली 5 बुकिंग से ज्यादा का लॉस आपको दिया अगर आपने रेगुलर फेयर बुक किया था। वेयर एज अगर आपने माईबे स्पेशल फेयर बुक किए हैं थ्रू आउट द ईयर, तो आपकी ऑलमोस्ट 24% सेविंग आपकी हो जाती है, क्योंकि आपके लास्ट मिनट कैंसिलेशन चार्जेस काफी हद तक और वो आपके लॉसेस को कवर कर लेते हैं। तो इफ आई टॉक अबाउट द बुक नाउ, मैं आपको यहाँ पे आपके फेयर रूल्स कैसे चेक करते हैं वो दिखाता हूँ। एंड ड्यू टू दिस, या सो यू कैन सी दिस, ये इस तरह का पॉपअप आ रहा है जो आपको सेविंग्स में हेल्प करता है। मैंने गो फर्स्ट का फ्लाइट चूज किया था, बट सिस्टम ने देखा कि इसी टाइमिंग के आसपास 2 फ्लाइट्स और हैं, तो सिस्टम ने मुझे रिकमेंडेशन दिया कि आप ये फ्लाइट भी चूज कर सकते हैं क्योंकि ये आपने जो चूज किया है उससे सस्ते फेयर्स पे है। सो यहाँ पे अगर मैं चूज करूंगा एयर इंडिया तो उसका फेयर सस्ता है, इसी वजह से चिपक है। बट अगर मुझे मेरी फ्लाइट ही चाहिए, सो आई गो देयर, आई ड्रॉप डाउन, और यहाँ पे मैं अपने फेयर रूल्स देख सकता हूँ क्योंकि मैंने माईबे स्पेशल फेयर चूज किया था। एज यू कैन सी, अप टू 2 hours बिफोर द डिपार्चर्स यू कैन कैंसिल दिस फ्लाइट ऑन जस्ट ₹99। ये एक ऐसा बेनिफिट है जो कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। मैक्सिमम पोर्टल्स पे, ऑनलाइन पोर्टल्स पे आपको ये अप टू 3 days बिफोर द डिपार्चर डेट मिलता है, बट यहाँ पे आपको अप टू 2 hours बिफोर द डिपार्चर टाइम मिलता है। इफ आई टॉक अबाउट द डेट चेंज चार्जेस, सेम, कोई चार्जेस नहीं ले रही है गो फर्स्ट, और यहाँ पे सिर्फ फेयर डिफरेंस जो है वो एप्लीकेबल रहेगा अप टू 2 hours बिफोर द डिपार्चर टाइम। तो दिस इज अ वेरी वेरी ह्यूज बेनिफिट फॉर द माईबेस यूजर्स की जहाँ पे आप बेफिक्र होके बुक कर सकते हैं एंड अप टू लास्ट 2 hours और 3 hours बिफोर द टाइम ऑफ द फ्लाइट आप अपना फ्लाइट डेट चेंज कर सकते हैं, कैंसिलेशन कर सकते हैं ऑन अ वेरी नॉमिनल प्राइस। मतलब 100 रुपए या अप टू 500 रुपीज के चार्जेस हैं अलग अलग एयरलाइंस पे। अगर आपके 5,000 रुपए में से 500 रुपए लग के 4,500 रुपए वापस भी आ रहे हैं, आई गेस इट्स अ विन विन डील। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ आपको माईबेस पे देखने को मिलती है, which I was talking about। इसके अलावा
जो फैक्टर्स था जैसे पॉपअप आया था, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। इसके थ्रू भी आप अपना पैसा सेव कर सकते हैं। अगर आप मैं यहाँ से एयर इंडिया चूज कर लेता हूँ, सो इफ यू कैन सी यहाँ पे फ्लाइट डिटेल्स देखने को मिलेंगी। तो ये फ्लाइट जो पहले 5130 की मैं बुक कर रहा था गोफर्स्ट की, अब यहाँ पे 4901 की हो गई है। सो दिस इज हाउ आई सेव्ड अराउंड 200 रुपीज ऑन दिस फ्लाइट ऑल्सो। जो मेरा ट्रैवल था सिर्फ 10 मिनट का टाइमिंग का चेंज था, मैंने एयर इंडिया पे स्विच किया और आई गॉट दिस फेयर। सो दिस इज हाउ यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी। एंड ऑल्सो अप्रूवल पॉलिसी के थ्रू भी आप यहाँ पे काफी सेविंग्स कर सकते हैं, विच आई एम गोना एक्सप्लेन इन अ मिनट। इसके अलावा जब आप बुकिंग बनाते हैं तो आपको यहाँ से ये बुकिंग फ्लो कंप्लीट करना पड़ता है। एज यू कैन सी मेरा पूरा डेटा यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिख रहा है और मुझे सिर्फ मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पे मेरा कंफर्म करने के लिए, और उसके बाद यहाँ से मील सेलेक्ट करना है जस्ट दैट। इसके अलावा कुछ मैंडेटरी फील्ड्स हैं जो आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने लिए। अगर मेरे लिए कोई फील्ड यहाँ पे ऐड ऑन करना है फॉर द कॉर्पोरेट, जहाँ पे आप अपना कोई भी रिमार्क ऐड ऑन करना चाहते हैं अपनी बुकिंग के लिए, जो आपकी रिपोर्ट में दिखाई दे जब आप रिपोर्ट डाउनलोड दें, तो वो इस तरह से यहाँ पे आप ऐड ऑन कर सकते हैं, विच कैन बी मैंडेटरी, विच कैन बी फ्लेक्सिबल। तो इस तरह से आप उस चीज को कंप्लीट कर सकते हैं। इंश्योरेंस अगर आपने सेलेक्ट करना है तो इंश्योरेंस को भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, यस करना चाहें यस, और अगर आपको नहीं चाहिए इंश्योरेंस, कैन सिंपली से नो। Once the booking for air is us, you just need to make the traveler primary before proceeding. It is a mandatory field कि आपको अगर एक traveler को primary fix करना होता है। अगर यहाँ पे 2-3 travelers होते हैं तो किसी को भी आप primary book कर सकते हैं, and then you can proceed for the payment. So this is what sorry, what is the reason to do this primary thing? तो बेसिकली क्या होता है कि जो भी कम्युनिकेशन चैनल होता है वो सिर्फ एक ट्रैवलर के साथ हो सकता है, मल्टीपल Okay, for communication purpose with the airline. एब्सोल्युटली। होता क्या है कि एक ट्रैवलर के पास सारा कम्युनिकेशन जाता है इफ दे आर ट्रैवलिंग टुगेदर, सो दैट कम्युनिकेशन चैनल शुड नॉट ब्रेक ऑन दैट। तो ये एयरलाइन की तरफ से फीचर दिया गया है इस माइलेज प्लेटफॉर्म पे कि एक ट्रैवलर आपका प्राइमरी होना मैंडेटरी है। And it can have multiple also? नो, प्राइमरी शुड बी वन। अगर आपके पास 5 ट्रैवलर बुक कर रहे हैं, 6 ट्रैवलर एक साथ एक ही पीएनआर पे आप बुक कर रहे हैं, तो एक ट्रैवलर को सिर्फ फॉर वन ट्रैवलर यू नीड टू मेक प्राइमरी। Okay, thank you. एज आई वाज टॉकिंग अबाउट कि कुछ भी कस्टमाइज्ड आपको रिपोर्ट के अंदर फील्ड चाहिए तो वो आप यहाँ पे कस्टमाइज करके लगा सकते हैं थ्रू दी एडमिन सेटिंग्स। एज आई मेंशन दिस फॉर जस्ट फॉर द एग्जांपल, आई जस्ट नीड टू मेंशन मैंडेटरी फील्ड, क्योंकि ये मैंडेटरी है। यहाँ पे हमने किया है इस चीज को मैंडेटरी की ताकि आपको ये चीजें रिपोर्ट में हाईलाइट हो। आप कोई भी अपना प्रोजेक्ट कोड डालना चाहें, आप एम्प्लॉय कोड डालना चाहें, आपको क्लाइंट के डिटेल, देयर आर लॉट ऑफ कॉर्पोरेट जहाँ पे क्लाइंट बेस्ड ट्रैवल होता है कि उनके क्लाइंट्स के पास जाना है, मीटिंग करनी है, उनका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वहाँ पे आप क्लाइंट नेम मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो क्लाइंट नेम हाईलाइट होगा, आपको उसको सेलेक्ट करना होगा या मैनुअली टाइप करना होगा। इट कुड बी डायलॉग बॉक्स, इट कुड बी ड्रॉप डाउन, जिस तरह से भी आपको कस्टमाइज फीचर चाहिए वो यहाँ पे आपका आ जाएगा। देन यू कैन गो फॉर द कंटिन्यू। नाउ यू कैन सी यू कैन सेलेक्ट द फ्लाइट्स अवेलेबल। जो भी सीट्स पे फ्लाइट अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपको हाईलाइट होगा। बिकॉज आई हैव सेलेक्टेड द एयर इंडिया, तो इसके अंदर ऑलरेडी मील्स बाय डिफॉल्ट होते हैं, तो वो सेलेक्ट करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। देन यू जस्ट नीड टू मेक द पेमेंट। अब अगर यहाँ पे मैं आता हूँ तो यहाँ पे 2 तरह से चीजें होती हैं कि आप अगर अपने पोर्टल पे अप्रूवल पॉलिसी लगाते हैं तो यहाँ पे पेमेंट पेज पे जाने के बाद आपको वो अप्रूवल रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है। अगर आप अप्रूवल पॉलिसी नहीं लगाते हैं तो डायरेक्टली पेमेंट पेज पे चले जाते हैं। तो इफ आई टॉक अबाउट कि मैंने यहाँ पे अप्रूवल पॉलिसी लगा रखी है, तो मैं यहाँ पे रीजन मेंशन करूंगा कि व्हाई आई नीड टू ट्रैवल, और मैं अपने मैनेजर को रिक्वेस्ट सेंड कर दूँ। ये रिक्वेस्ट चली जाती है मेरे मैनेजर के पास, और जब ये अप्रूव हो जाएगा तो अप्रूव होने के बाद यहाँ पे बुकिंग अप्रूव्ड का ऑप्शन आ जाता है। सो इफ आई जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई विल जस्ट चेक दिस अप्रूविंग रिक्वेस्ट, आई विल शो यू हाउ इट गॉट चेंज्ड। Meanwhile, I would like to highlight that there are multiple discounts जो पोर्टल पे ऑलरेडी चलते रहते हैं। जैसे आप अभी देख सकते हैं कि नागेंद्र के टोटल अमाउंट में ऑलरेडी 257 रुपीज का पेमेंट ऑफ है। सो जब आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं, इवन अगर आप मल्टीपल टाइम्स यूजर हैं, देयर इज अ फ्रीक्वेंट डिस्काउंटिंग प्रोग्राम दैट वी कीप रनिंग फॉर पीपल मेकिंग देयर बुकिंग्स वाया माइबीज प्लेटफॉर्म। Thank you, Priyanka.
सो अभी आप देखेंगे कि बुकिंग अप्रूव हो चुका है. So you can see your request has been approved. Now I will go to make the complete booking for the payment. So मेरे मैनेजर ने तुरंत इसको अप्रूव किया अपने ईमेल से, व्हाट्सएप से. वहाँ पे जाके फिर मुझे सिर्फ पेमेंट करना है और बुकिंग कंप्लीट करनी है. सो एज यू सी यहाँ पे जो मैंने सीट सेलेक्ट किया था वो शायद ब्लॉक्ड हो चुका है पहले से, तो उस वजह से सिस्टम ने इसको एरर शो करके ब्लॉक कर दिया है. तो इस तरह के केसेस में जहाँ सीट ब्लॉक हो चुका है या फिर कोई भी मील सॉरी फेयर चेंज हो चुका है, तो उस केस में आपका बुकिंग कंप्लीट पेमेंट पे नहीं जाता. यू जस्ट नीड टू गो अहेड एंड मेक द बुकिंग अगेन, और उसके बाद वो बुकिंग कंप्लीट करनी पड़ती है. सो दिस इज अगेन द क्लैरिटी की रियल टाइम इन्वेंट्री आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है कि सीट किसी और ने बुक कर लिया मेरे बुक करने से पहले, तो इस वजह से वो डुप्लीकेट बुकिंग नहीं बना है. तो दिस इज व्हाट मायबेज ऑल अबाउट, कि यहाँ पे रियल टाइम इन्वेंट्री के जो केसेस है वो सामने आपको देखने को मिलते हैं. ऑल्सो अगर आपको चेक करना है लास्ट में आके कि कौन सा फ्लाइट आप लोग बुक कर रहे थे, तो आप किसी भी पेज पे जब है बुकिंग के, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं कि आपने रेगुलर फेयर बुक किया है या वाइवे स्पेशल फेयर बुक किया है. तो दिस इज हाउ इट वर्क्स. इसके बाद पेमेंट का पेज आता है, दैट आई कैन शो यू अगेन ऑन द होटल्स डिपार्टमेंट. सो नाउ आई एम स्विचिंग टू द होटल्स पार्ट. होटल्स में भी सेम बुकिंग फ्लो है. जस्ट यू नीड टू मेंशन द लोकेशन ऑफ द सिटी, date of travel, or which date or number of persons who are traveling, and after that you just need to, as I mentioned, the name. See, this is field is mandatory. यहाँ पे आप इसको blank नहीं छोड़ सकते और आपको कोई ना कोई नाम डालना पड़ेगा. I'll tell you example जहाँ पे आपका कोई भी एम्प्लॉय डेटा अपलोड नहीं है, या आप किसी ऐसे एम्प्लॉय के लिए या गेस्ट के लिए बुकिंग बना रहे हैं जिसका डेटा माइबिज पोर्टल में आपने अभी तक अपलोड नहीं किया. Just need to mention the guest, make the booking as a guest, and you can proceed further for the search. सो इस केस में क्या होगा, ऑन द लास्ट पेज जब आप रूम सेलेक्ट कर लेते हैं या फ्लाइट सेलेक्ट कर लेते हैं, वहाँ पे ब्लैंक स्पेस आएगा जहाँ पे आप मैनुअली एंटर कर सकते हैं डिटेल्स. तो एज यू कैन सी लॉट ऑफ मल्टीपल ऑप्शंस ऑफ होटल्स कमिंग अप, और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको आउट ऑफ पॉलिसी देखने को मिल रहे हैं. सो आउट ऑफ पॉलिसी इसीलिए देखने को मिल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमने पॉलिसी सेटअप कर रखा है बजट वाइज एंड अप्रूवल वाइज. तो अगर मुझे रीजन जानना है कि आउट ऑफ पॉलिसी क्यों आ रहा है, तो आई नीड टू गो देयर, और यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा क्या रीजन है. सो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर द सिलेक्टेड सिटी द मैक्सिमम बजट पर नाइट इज 5,000 रुपीज पर पर्सन. तो एज यू कैन सी मेरा जो बजट है यहाँ पे वो 5,000 रुपए का था, और ये होटल 12,889 का आ रहा है, 12,879. तो दैट्स व्हाई इट इज शोइंग आउट ऑफ पॉलिसी. आई कैन बुक इट, बट उसके लिए मुझे फर्दर अप्रूवल लेना पड़ेगा. So no, I just go there downstream. ये मेरे बजट के अंदर आ रहा है. So I'll quickly select that जो मेरे बजट के अंदर आएगा, and I'll book that. As also you can see MyBiz Assured tags भी यहाँ पर है. So काफी सारे होटल्स पे आपको MyBiz Assured tags देखने को मिलेंगे जिनकी मैं बात कर रहा था. तो होटल बुकिंग के अंदर मैं बेनिफिट्स की बात करूं अगर, तो यहाँ पे आपको सबसे बड़ा बेनिफिट है MyBiz Assured प्रॉपर्टीज बुक करने में, जहाँ पे आपको बेस्ट प्राइस मिलता है, जहाँ पे आपको जीएसटी का इनवॉइस एश्योरेंस मिलता है हमारी तरफ से. ऐसी प्रॉपर्टीज जो है वो अराउंड 75% ऑफ द टोटल इन्वेंट्री हमारे MyBiz प्लेटफॉर्म पे है, और ये कंटिन्यूसली बढ़ रही है. 4 साल में वी स्टार्टेड विद 10% ऑफ MyBiz Assured प्रॉपर्टीज, एंड नाउ इट इज अप टू 75 to 80% ऑफ द टोटल इन्वेंट्री. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जीएसटी इनवॉइस एश्योरेंस है, MyBiz स्पेशल रेट्स और हाईली रेटेड बाय बिजनेस ट्रैवलर्स. तो बेसिकली इनकी रेटिंग को भी हम लोग जज करते हैं, इनकी सर्विसेज, इनके फीडबैक्स जो ट्रैवलर्स के थ्रू आते हैं उनको भी जज करते हैं. इस फैक्टर के तौर पे हम लोग इसको यहाँ पे लिस्ट करना शुरू करते हैं. So our hotel supply team is working very comprehensively on these things, और टाइम टू टाइम ये चीजें अपग्रेडेशन होती रहती है. जहाँ पे भी सर्विसेज के इश्यूज आते हैं, कंप्लेंट्स आनी शुरू होती है, फीडबैक्स के इश्यूज आते हैं, वो प्रॉपर्टीज को हम लोग डीलिस्ट भी करते हैं. तो मेक श्योर कि आप MyBiz Assured प्रॉपर्टी बुक करें ताकि आपको जीएसटी का लॉसेज ना हो. So which is a very good and important thing to get a benefit out of it. So if I select this hotel, I'll go further and I can see multiple options would be there coming up for the room selections. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं room with free cancellation breakfast only, with free cancellation breakfast plus lunch and dinner, और यहाँ पे free cancellation जो है वो 25 Feb तक है. मेरी बुकिंग का जो टाइम है, चेक इन टाइम, वो 27 मार्च है, एंड 25 Feb तक ये फ्री कैंसिलेशन अवेलेबल है. बहुत सारे होटल्स आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जहाँ पे फ्री कैंसिलेशन एट द टाइम ऑफ चेक इन तक भी मिलेगा आपको, कि जहाँ पे टिल चेक इन आपको फ्री कैंसिलेशन मिलेगा, कहीं पे आपको 24 आवर्स बिफोर द चेक इन टाइम फ्री कैंसिलेशन. तो ये सारे फैसिलिटीज अवेलेबल है. whatever room category, whatever meal plan you want to select, you can select that, and I'll select this room. I'll move further. As you can see,
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिटेल्स जो है वो ऑटोमेटिकली पिक होके आई थी फॉर द ईमेल एड्रेस, जो जिस ईमेल आईडी से मैंने लॉगिन किया है। जो भी आपने ईमेल आईडी लॉगिन के लिए यूज किया है वो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। आपको बस ट्रैवलर का नाम यहाँ पे डालना पड़ेगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में एज अ गेस्ट बुकिंग की थी, तो यहाँ पे मैं सिर्फ ट्रैवलर का नाम डालता हूँ। अगर बाई चांस मुझसे गलती से, जैसे बीच में एलवी ज्वेल्स ने मुझसे पूछा था, एक क्वेरी की थी उन्होंने कि क्या हम मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं पोस्ट बुकिंग होटल के या फ्लाइट्स के केस में। तो होटल्स के केस में यस, अगर मैं यहाँ पे नगेंद्र की जगह, नगेंद्र पाल सिंह की जगह नगेंद्र सिंह कर देता हूँ, मेरी आईडी पे नाम नगेंद्र पाल सिंह है, सो यस आई कैन चेंज इट विद द अप्रूवल ऑफ द होटल। उसके लिए कुछ मुझे सपोर्ट पे कॉल करना पड़ेगा और सपोर्ट टीम विल कोऑर्डिनेट विद द होटल टू गेट द नेम चेंज। मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली इज देयर, मैंडेटरी फील्ड्स आई हैव टू पिक इट अप, और उसके बाद आई कैन वे फॉर द कंटिन्यू। सो इजीली, बहुत सिंपल फ्लोज हैं, आपको सिंपली अपनी मैंडेटरी फील्ड्स को कंप्लीट करना है और उसके बाद आपको पेमेंट्स करनी है। सो एज यू कैन सी, जो पेमेंट के ऑप्शंस यहाँ पे आते हैं, देयर आर मल्टीपल ऑप्शन ऑफ द पेमेंट। आप कोई भी यूपीआई ऑप्शन पिक कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं, गिफ्ट कार्ड्स यूज कर सकते हैं, एंड obviously book now pay later और net banking. book now pay later is coming up very soon. It's a new feature coming up. अभी ये live होना बाकी है। बाकी rest of the cards payments और the net banking payments are still live. आप ये सारे mode of payment यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक additional benefit of the wallet payment है। अगर आप MyBiz wallet यूज करते हैं MyBiz प्लेटफॉर्म का, उसका पेमेंट वॉलेट जो है वो यहाँ ऊपर टॉप पे दिखाई देगा आपको, और वो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। सेम जैसे आप यूज करते हैं या एयरटेल वॉलेट मनी यूज करते हैं, किसी भी तरह का आप मोबाइल वॉलेट यूज करते हैं, उसी तरह से MyBiz वॉलेट भी काम करता है। आप सोर्स ऑफ पेमेंट यहाँ से रिचार्ज कर सकते हैं, अपना वॉलेट रिचार्ज कीजिए, यूज कीजिए, विच इज वेरी बेनिफिशियल कि आपको उसका भी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखने को मिलता है, और वो भी आपका जिस बुकिंग के लिए यूज हुआ है ट्रांजैक्शन, उसके अगेंस्ट में देखने को मिलता है। तो you need not to maintain a separate data for a credit card statement, for a net banking statement, मैनुअली आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। इट्स ऑलवेज बेटर कि अपना MyBiz वॉलेट रिचार्ज कीजिए और MyBiz वॉलेट से ही पेमेंट कीजिए। सो आपको उसका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखने के लिए कोई भी पेन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू जस्ट गो इन योर एडमिन सेटिंग्स, डाउनलोड द वॉलेट ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, एंड यू कैन सी कि किस होटल बुकिंग के अगेंस्ट में कितना पेमेंट हुआ और कब हुआ था, कितना रिफंड आया था। तो आपको पेमेंट फ्लो भी स्विफ्ट हो जाता है, आपका रिफंड प्रोसेस भी जल्दी होता है। जब आप वॉलेट यूज करना शुरू कर देते हैं, तो अगर आपका कोई कैंसिलेशन होता है तो आपको रिफंड भी सेम मोड ऑफ पेमेंट में आता है, और विच इज लाइक वेरी स्मूथ एंड वेरी क्विक, विद इन सेम डे और अप टू 2 to 3 days के अंदर वॉलेट के अंदर पैसा वापस आ जाता है। वेयर एज अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं या नेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं, तो मिनिमम 7 to 8 वर्किंग डेज उसमें लग जाते हैं। तो MyBiz वॉलेट हैज दैट बेनिफिट कि आपको जल्दी पेमेंट रिसीव होता है और जल्दी आपके पेमेंट्स हो भी जाते हैं। वहाँ पे आपको कोई पेमेंट गेटवे फेलियर का इशू भी नहीं आता है। कई बार क्या होता है, क्रेडिट कार्ड यूज करने पे बैंक सर्वर्स डाउन अगर हो रहे हैं, तो वहाँ पे पेमेंट फेलियर्स हो जाते हैं और बुकिंग आपकी अनसक्सेसफुल हो जाती है। MyBiz वॉलेट के केस में ऐसा कुछ नहीं होता। So this is a very good payment source. So these are the major benefits. Quickly, I'll remind you. I'll quickly wrap up these things. Flight के केस में आपको up to 2 hours before the cancellation है, date change है, plus MyBiz support के through आप slight modification in the names कर सकते हैं। होटल के केस में MyBiz Assured Properties अगर आप बुक कर रहे हैं तो आपको GST इनवॉइस एश्योरेंस है। अगर होटल चेकआउट के टाइम पे इनवॉइस नहीं दे रहा, तो आप होटल से अपने मेक माई ट्रिप सपोर्ट से आप वो क्लेम कर सकते हैं। अगर आपको मेक माई ट्रिप सपोर्ट इन दी एक्सेप्शनल केसेस नहीं दे पाता है, तो हम आपको GST अमाउंट भी रिफंड कर सकते हैं। ऑल्सो टाइम टू टाइम ऑफर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इन द स्टार्टिंग ऑफ द मंथ वेलकम बैक का ऑफर्स आते हैं ऑन दी रेगुलर बेसिस। अगर मंथ एंड की बात करें, तो कई बार थैंक यू 1 का ऑफर आता है MyBiz प्लेटफॉर्म पे, इफ यू आर यूजिंग इट रेगुलरली। इसके अलावा आप कैब्स और बसेस भी यूज कर सकते हैं यहाँ से, और उनकी रिपोर्ट्स भी आपके पास एक ही प्लेटफॉर्म पे देखने। कैब्स में आपको जो मेजर ऑप्शंस आते हैं वो आउट स्टेशन वन वे, आउट स्टेशन राउंड ट्रिप, एयरपोर्ट ट्रांसफर्स और अर्ली रेंटल्स। अर्ली रेंटल्स अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है दिसंबर से। सो अगर आपको किसी एक सिटी में बहुत सारे काम हैं मीटिंग्स को लेके, तो आप अर्ली बेसिस पे भी उसको रेंट पे ले सकते हैं। इसके अलावा बसेस जो है वो डायरेक्टली फीड अप होती हैं रेड बस से। आई बिलीव आपको ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि रेड बस भी मेक माई ट्रिप की ही एंटिटी है, सेम एज GoIbibo। तो रेड बस का जितना बस फीड है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, आप बस भी बुक कर सकते हैं क्रॉस इंडिया में। ट्रेन्स एज आई टोल्ड यू, ट्रेन्स अभी आना बाकी है, इसका डेवलपमेंट चल रहा है, बट स्टिल नॉर्मल मेक माई ट्रिप पे अभी अवेलेबल है, तो आप चाहे तो वहाँ से बुक कर सकते हैं। बट MyBiz पे वेरी सून इन द कमिंग फाइनेंशियल ईयर, नेक्स्ट क्वार्टर में होपफुली ट्रेन्स भी आपको यहाँ पे ऑनलाइन देखने को मिलेगा। MICE, as I explained you in the starting,
पूरी डेडिकेटेड टीम है हमारे पास माइस की जो इवेंट्स हैंडल करती है, आपके ग्रुप ट्रैवल हैंडल करती है, और वो एक ऑफलाइन टीम है। तो जो भी आपकी रिक्वेस्ट है आप माइस पे यहाँ पे रेज कर सकते हैं। आप माइस के टैब पे जाते हैं, अपनी रिक्वेस्ट को यहाँ पे टाइप करके आप अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई इवेंट कराना है, कोई भी आपको कॉर्पोरेट के लिए गिफ्टिंग लेनी है, गिफ्ट कार्ड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, तो वो आप चीजें यहाँ से डायरेक्टली माइस से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। इनफैक्ट वीजा आल्सो कैन बी हैंडल्ड बाय आवर वीजा टीम, तो उसकी रिक्वेस्ट भी आप माइस के थ्रू रेज कर सकते हैं। Rajendra, quickly, if you can sum down on the sign up I'm details. coming upon that only sign up process. Just give me a moment. So this is the live MyBiz platform. I'll quickly show you one basic thing. Nagendra, I think so. It was a one-stop solution that you have given to everybody. You don't have to go to a travel agent or you have to be dependent on anybody. I think so. A small company can also manage with a few peoples in their organization. I think so. It's a one-stop solution that is accessible while you're traveling. अच्छा solution आपने बताया कि क्या क्या हो सकता है, और एक इंडिविजुअल छोटी कंपनी होती है जो जनरली ट्रैवल बोर्ड पे रहती है, उन पे डिपेंडेंट होती है। आई थिंक सो एक्सेसिबिलिटी आपने ज्यादा कर दिया है। So yes, that's what we are good into it कि हमने जब मेक माई ट्रिप शुरू किया था तो सबसे पहले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो मेक माई ट्रिप आया था, वहाँ पे लोग काफी अच्छा फीडबैक जब लोगों को आने लगा, उसके बाद धीरे धीरे जब ये कॉर्पोरेट प्लेटफॉर्म की तरफ हम लोग मूव करने लगे, तो जितनी सारी कॉर्पोरेट की रिक्वायरमेंट्स आती हैं उसको ध्यान में रखते हुए पूरा डिजाइन किया गया था कि यहाँ पे चाहे अगर आप डिसेंट्रलाइज मोड यूज करना चाहें, लाइक एम्प्लॉय कैन यूज देयर ओन साइन अप टू मेक द टिकट्स, आप वो भी कर सकते हैं। आप सेंट्रलाइज ट्रैवल डेस्क के थ्रू ऑपरेट करना चाहें, आप वो भी कर सकते हैं। सो वी आर क्वाइट फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट रिक्वायरमेंट्स, जहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का बुकिंग आपको चाहिए, फ्लाइट से चाहिए, होटल से चाहिए, कैब से चाहिए, जो की मेजर रिक्वायरमेंट्स होती हैं कॉर्पोरेट ट्रैवल, वो सारी यहाँ पे अवेलेबल है और सिंगल पॉइंट सोल्यूशन आपके पास सारा अवेलेबल है। बस एक लास्ट चीज मैं आपको यहाँ पे एक जो एडमिन हेड्स हैं या कॉर्पोरेट हेड्स हैं, उनके लिए मैं एक चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आपका जो भी प्लेटफॉर्म होता है, आपके पास एक एडमिन राइट्स आते हैं, और वो आप यहाँ पे किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं वो मैं जस्ट आपको एक क्विकली पिक्चर देना चाहूंगा। जैसे ये एक लॉगिन है जिसके पास एडमिन राइट्स हैं, तो जिसके पास भी एडमिन राइट्स होते हैं वहाँ पे ये एडमिन सेटिंग्स दिखता है। आप एडमिन सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो जो इनिशियली मैंने आपको बताया था एक पूरा डैशबोर्ड है, जहाँ पे आपको सारी चीजें एक जगह देखने को मिलती है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे टोटल बुकिंग्स, टोटल स्पेंड, टोटल सेविंग्स, करंट वॉलेट बैलेंस, इस तरह से पूरा आपको एक सेटअप देखने को मिलता है। डिटेल में आप जाना चाहें तो आप ट्रैवल मैनेजमेंट में जाते हैं, यहाँ पे आप ट्रैवल रिपोर्ट सेक्शन देख रहे हैं। इस ट्रैवल रिपोर्ट सेक्शन के अंदर आपको सारी रिपोर्ट की समरी मिलती है और डिटेल्ड एक्सेल फाइल डाउनलोड करने को मिलता है। एज यू कैन सी, फ्लाइट रिपोर्ट, फ्लाइट पीएनआर रिपोर्ट, होटल रिपोर्ट, वॉलेट ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, बस, कैब्स एंड सेविंग्स रिपोर्ट्स। सेविंग्स मिस्ट में भी आपको काफी कुछ देखने को मिलता है, जैसे अगर आपने चीपर फेयर रिकमेंडेशन रिफ्यूज कर दिया या आपने पॉलिसीज के अकॉर्डिंग आउट ऑफ पॉलिसी बुकिंग ज्यादा बना दी है, तो वो सब आपको सेविंग्स मिस्ट में आपको देखने को मिलता है, जिसको आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंट्रोल कर सकते हैं ट्रैक करते हुए। तो एक कॉर्पोरेट के लिए बहुत बेनिफिशियल टूल है। अगर मैं इन्वॉइसेस की बात करूँ तो यहीं पे आपको इन्वॉइसेस देखने को मिलती हैं। फ्लाइट्स की सारी इन्वॉइसेस आपको माईबिज पोर्टल पे अपलोड हो जाती हैं, तो आपको जीएसटी क्लेम करने के लिए इन्वॉइसेस चाहिए होती है, वो सारी इन्वॉइसेस आपको यहाँ पे मिल जाती है। मेक माई ट्रिप की इन्वॉइस भी आपको यहीं मिलेगी। उसी के बिहाफ पे अगर आप देख रहे हैं सेम बुकिंग आईडी पे एक एयरलाइन की टिकट बुक थी, तो एयरलाइन की बुक इनवॉइस भी आपको यहीं देखने को मिल जाती है। सेम इस होटल, काफी सारी होटल इनवॉइसेस यहाँ पे आती है, बट मैक्सिमम होटल इनवॉइसेस वी ऑलवेज रिकमेंड कि आपको चेकआउट के टाइम होटल से लेनी पड़ती है। इन केस होटल डिनाई कर रहा है देन यू कैन रीच आउट टू अस। ट्रैवल पॉलिसी तो मैं आपको बता रहा था, एज अ कॉर्पोरेट आप लोग यूज कर सकते हैं टू लिमिट द पॉलिसीज, जहाँ पे बहुत सारी तरह की पॉलिसीज पॉसिबल है। फ्लाइट बुक कर सकते हैं, नहीं कर सकते, होटल्स, कैब्स, इंटरसिटी कैब्स, इंटरनेशनल फ्लाइट्स, इंटरनेशनल होटल्स, सबकी अलग अलग पॉलिसीज आप मैप कर सकते हैं। प्राइस सेगमेंट फिक्स कर सकते हैं, फेयर टाइप फिक्स कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। बुकिंग विंडो आप कितने दिन पहले किसी को अलाउ करते हैं बुकिंग के लिए, वो आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। चीपर फेयर रिकमेंडेशन आपको देखने को मिले या ना देखने को मिले, वो आप कस्टमाइज कर सकते हैं। कौन सी क्लास में एम्प्लॉय ट्रैवल कर सकते हैं, वो आप क्लास फिक्स कर सकते हैं। अप्रूविंग पॉलिसी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेट हो जाती है। इन पॉलिसी है तो अप्रूवल चाहिए या नहीं चाहिए, आउट ऑफ पॉलिसी बुकिंग है तो उसमें अप्रूवल चाहिए या नहीं चाहिए, वो भी आप ब्लॉक कर सकते हैं। अगर आप मानते हैं कि आपकी सेटअप पॉलिसीज ऐसी हैं कि आउट ऑफ पॉलिसी बुक होना ही नहीं चाहिए, तो आप ब्लॉक भी कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन कस्टमाइज एवरीथिंग। इसके अलावा
मैनेजर कितने कितने आपको रखने हैं, आप एक मैनेजर पे रखना चाहते हैं अप्रूवल, आप एक मैनेजर पे रखिए, 2 पे, 3 पे, 4 पे, जितने भी आपको मैनेजर से अप्रूवल मैंडेटरी है, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सिमिलरली आप होटल्स के अंदर टीयर वाइज होटल्स भी रख सकते हैं कि आपको सपोज मेट्रो सिटीज का टीयर्स अलग है, नॉन मेट्रो सिटीज के टीयर्स अलग है, तो वो आप टीयर वाइज होटल्स भी यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे आप देख रहे हैं टीयर 0 में हमने रखा है मुंबई, पुणे, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, जो मेट्रो सिटीज है, उनका बजट अलग फिक्स हो सकता है। टीयर 1 में दूसरी सिटीज है, उनका टीयर बजट अलग फिक्स हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे एक और टीयर जोड़ना चाहूँ तो मैं टीयर 2 भी जोड़ सकता हूँ। तो इफ आई से टीयर 3 में मैं अगर मैं आगरा ऐड कर रहा हूँ तो आगरा आ जाएगा, या इसके अलावा मुझे जोधपुर ऐड करना है, जोधपुर भी ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आप टीयर्स डिसाइड कर सकते हैं और उनका बजट आप यहाँ पे एक्सक्लूसिवली सेट कर सकते हैं। तो ये भी पॉलिसी आप यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं और आपका जितना ईमेल फ्लो है, वर्बल कम्युनिकेशंस है, टेलीफोनिक कम्युनिकेशंस है ट्रैवल को लेके, वो सारे आप यहाँ पे ऑटोमेट कर सकते हैं। एज आई टोल्ड यू, एक्सपेंस मैनेजमेंट भी यहाँ पे सिंकअप हो सकता है, या आप हमारा एक्सपेंस मैनेजमेंट टूल भी यूज कर सकते हैं। जब भी एम्प्लॉय ट्रैवल करता है उसके छोटे मोटे एक्सपेंसेस भी होते हैं जो वो क्लेम करते हैं। लॉन्ड्री के एक्सपेंसेस हैं, लोकल कैब के एक्सपेंसेस हैं, कोई मील हुई है होटल में एक्स्ट्रा, उसके एक्सपेंसेस हैं। तो वो सब यहाँ पे आप कैटेगरीज देख रखे हैं। इसके अलावा आप कस्टमाइज कैटेगरीज अपने लिए अलग से जोड़ भी सकते हैं। तो जो कैटेगरी आपको चाहिए वो यहाँ पे आप ऐड ऑन कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट में एम्प्लॉय यहाँ पे टीआरएफ फॉर्म भर के, टीएनई फॉर्म भर के क्लेम भी कर सकते हैं। So all these things as a whole corporate solution available on the MyBiz platform. आप जितना ज्यादा इसके प्रोडक्ट को, इसके टूल को यूज करते जाएंगे, उतना बेनिफिशियली आपके लिए ये होता चला जाता है। चाहे आप पॉलिसीज पे जाएं, चाहे आप माई स्कीम के लिए जाएं, चाहे आप अप्रूवल पॉलिसीज के लिए जाएं, आपके हाथ में पूरा कंट्रोल है बीइंग एन एडमिन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वन थिंग आई मिस दैट, मैं आपको साइन अप फ्लो समझा देता हूँ। साइन अप फ्लो किस तरह से होता है। जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल शेयर माय अनदर स्क्रीन। Just last thing which is missing. In the meantime, अगर किसी की प्लीज कोई क्वेरी है अभी तक के केस में, you please type in the chat box. We'll answer that as well. My team is looking into it, and Alan will respond to that query on the chat box itself. I think again somebody has asked if Alan, we please. have any issues with MyBiz, then we have to file any form or send email to a particular email ID. No. You, Jam admin, I'll tell you that there's no need of requiring any particular send mail or any form. We do have the 24/7 support team. उनकी डिटेल्स अभी आनंद आपको इसी चैट बॉक्स में दे रहे हैं। आपका पास एक नंबर है, आपके पास एक ईमेल आईडी है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका ट्रैवल कितने दिनों बाद का है, डिपेंडिंग अपॉन द अर्जेंसी यू कैन यूज ईदर ऑफ द ऑप्शंस। अगर आपका अर्जेंट ट्रैवल है आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। आपका लॉन्ग टर्म ट्रैवल प्लान है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन है, कोई इशू है, तो आप वहाँ पे उसको रेज भी कर सकते हैं मेल के थ्रू। एंड जब आप मेल ड्रॉप करते हैं तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली एक रेफरेंस नंबर जनरेट होकर आपके मेल पे ऑटो रिवर्ट पे आता है। फॉर द फ्यूचर रेफरेंस आप उस रेफरेंस नंबर्स के थ्रू अपने कोऑर्डिनेशंस कर सकते हैं। So Alan will give you the details over the chat box. Just one thing, मैं आपको बुकिंग फ्लो की तरफ लेके जा रहा हूँ। जस्ट बुकिंग फ्लो कैसा होता है। मनीष जी, आप बात कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं सर, वो मुझे होटल की बुकिंग के बारे में ही पूछना था। मतलब बताइए मनीष जी प्लीज। नहीं सर, वो माई बीच पे जब जाते हैं ना तो वहाँ पे सर्च अनदर डेट दिखा रहा के मुझे तो, क्योंकि आप जब एक्सप्लेन कर रहे थे ना तो मैं वही टाइम पे सेकंड पे माई बीच का ही वो कर रहा था, तो उसमें सर्च अनदर डेट दिखा रहा था।
उसमें कोई पर्टिकुलर होटल पे दिखा रहा था या सोल्ड आउट दिखा नहीं, रहा है? मैंने डाला था होटल्स नियर बेंगलोर एग्जीबिशन सेंटर, तो वो दिखा रहा था। फिर आप अगर 20-25 किलोमीटर लॉन्ग जाते हो तो मिल रही है होटल, बट नियर द एग्जीबिशन सेंटर सर्च अनदर डेट दिखा रहा है वो। So maybe there is a quite possibility कि नियरेस्ट जो होटल्स अभी हैं वो हो सकता है शायद कुछ इन्वेंट्री सोल्ड आउट हो रही हो उसमें। हो सकता है सर, हो That could सकता be the है। reason. खाली ये एक क्वेरी थी, इसके लिए मैंने एक रेज किया था एंड खाली। ठीक है शांति। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। ओके। Yeah. So I hope this screen is available too. Employee login and self booking basically है। So login के लिए जो आपको sign up link दिया गया है, अजय, if I'm not sure, जो हमने sign up link आपको शेयर किया है वो आप सभी पार्टनर्स के साथ शेयर करने वाले हैं, राइट? संदीप, हाय, आपने एक क्वेरी रेज करी, हाउ कैन वी रजिस्टर विद मायबिज एज GJEPC मेंबर? सो इसके लिए आई वुड लाइक टू आंसर दैट वी हैव क्रिएटेड अ कस्टमाइज्ड साइन अप लिंक, दैट लिंक विल बी शेयर्ड बाय द अजय फ्रॉम GJEPC टू ऑल ऑफ यू। आप उसके थ्रू साइन अप करते हैं तो आपको इन फ्यूचर आल्सो यू विल गेट गोइंग टू हैव सम डिस्काउंट्स कमिंग अप। वी विल प्लान अकॉर्डिंगली फॉर द अपकमिंग इवेंट्स आल्सो, जहाँ पे आपको बट नागेंद्र आप चैट में भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक दैट विल बी आइडियल दैट दे कैन डू अ चैट आल्सो। okay, Ria, the sign up link, can you please share on the chat box, which we have shared with Ajay also? Yes, ma'am. So this is basically the basic booking flow. यहाँ पे जो एडमिन है आपके एम्प्लॉय को इनवाइट भेजते हैं, जो भी कंपनी का एडमिन है या सीनियर्स हैं जिनको एडमिन सेटिंग्स का राइट्स है, तो बेसिकली वहाँ पे आपको एम्प्लॉय सेक्शन में जाके इनवाइट वाया ईमेल एंड व्हाट्सएप ये आप अपलोड कर सकते हैं। I'll show you on the live account. Just give me a moment. So यहाँ पे एडमिन सेटिंग्स जो मैं आपको पहले बता रहा था, यहीं से आपको ईमेल अपने एम्प्लॉयज को इनवाइट करना होता है। गो इनटू द कंपनी एंड एम्प्लॉय सेक्शन, एम्प्लॉयज। तो यहाँ पे आप देखेंगे दो ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं। पहले से जो इनवाइटेड एम्प्लॉयज हैं वो यहाँ पे लिस्टेड हैं, यहाँ पे वेरीफाइड एम्प्लॉयज भी लिस्टेड है जिन्होंने अपना साइन अप क्रिएट कर लिया है। तो कैसे आप इनवाइट करेंगे अपने एम्प्लॉयज को, उसके दो तरीके हैं। अगर वन ऑन वन छोटे नंबर्स में एम्प्लॉयज को इनवाइट करना है, 1 या 2 लोगों को, 3 लोगों को, आप वन ऑन वन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को इनवाइट करना चाहता हूँ, तो I'll put that name, his email ID. और यहाँ पे मैं उनका ग्रुप डिसाइड कर सकता हूँ कि वो कौन से ग्रुप में फॉलो करेंगे। आप ग्रुप अपने हिसाब से नेमिंग कर सकते हैं और मैं यहाँ से उनको इनवाइट भेज दूंगा। तो ये आप देख रहे हैं सेंड इन्विटेशन लिंक टू द एम्प्लॉय, ये आपको मैंडेटरी है क्लिक करना जब आपको इनवाइट भेजना है साइन अप के लिए किसी भी एम्प्लॉय को। यहाँ से आप इनवाइट कर सकते हैं और यहाँ पे बेसिकली रिपोर्टिंग मैनेजर भी आप यहाँ पे अलाइन कर सकते हैं। अगर कोई मैनेजर आपको असाइन करना है उनके ऊपर, तो यहाँ पे आप उनका ईमेल आईडी जो ऑलरेडी एडेड है पहले से, वो आप यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। मेल आईडी में कुछ मैंने मिस कर दिया। नागेंद्र, अगर किसी इंडिविजुअल को दिक्कत हो रही है साइन अप में, तो क्या वो डायरेक्ट नंबर से कॉल करेगा या कोई आपका एक सपोर्ट सिस्टम का सेंट्रलाइज है इसके लिए? सेम वही नंबर है जो सपोर्ट का है, आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं उस नंबर पे। एंड वेरी सून हम लोग GJEPC के जो पार्टनर्स हैं उनके लिए एक डेडिकेटेड मोबाइल नंबर एंड द ईमेल आईडी वी आर प्रोवाइडिंग इन द कमिंग वीक, व्हिच वी विल शेयर विद GJEPC and accordingly with you also, guys. Thank you. So we are already in lineup. वो सब discussions already internally हो चुका है. So next week Ajay, we will share you the direct Spock team and the email IDs and numbers also for your partners, so that अगर कल को कोई issue आता है उनको sign up में या booking flow के अंदर, तो they can directly contact them as well. दूसरा ऑप्शन जो बल्क अपलोड का है, अगर आप एक साथ मल्टीपल एम्प्लॉयज को इनवाइट भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक CSV फाइल डाउनलोड होती है, उसको आप डाउनलोड करते हैं
और वहां पे आप अपना एम्प्लॉय डेटा भर फिल अप करके उसमें यही चीजें आती हैं, जेंडर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, देयर अप्रूविंग मैनेजर्स, और सर्टेन फील्ड्स और भी हैं जो आप रखना चाहें रख सकते हैं, नहीं तो उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। बट ये जो 6 चीजें हैं ये मैंडेटरी है, जेंडर से लेके फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड देयर अप्रूविंग मैनेजर। तो वहां पे आप इसको अपलोड कर सकते हैं, और वो सारा डेटा जो अपलोड करेंगे तो वो यहाँ पे आपको इनवाइटेड सेक्शन देखने को मिलेगा। सिमिलरली जब आप इनवाइट भेजते हैं तो उन सारे एम्प्लॉयज के पास एक ईमेल जाता है साइन अप के लिए, और वो उसमें एक वेरिफिकेशन का लिंक आता है। उनको वहां से वेरीफाई करके अपना ईमेल साइन अप लॉगिन करना पड़ता है और वेरीफाई करना पड़ता है। जो लोग वेरीफाई कर देते हैं अपना अकाउंट अपने क्रेडेंशियल्स के साथ में, वो लिस्ट होके वेरीफाइड की कैटेगरी में फॉल करते हैं। उसके बाद वो अपने ईमेल आईडी से साइन अप कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, एंड शुड बी लाइक अ कॉमन डोमेन। किसी किसी ऑफिसेज में, किसी किसी कॉर्पोरेट में जीमेल यूज होता है, तो जीमेल के थ्रू, बिकॉज इट्स अ ओपन डोमेन, तो उसके थ्रू आपको माइबिस की टीम के साथ, सपोर्ट टीम के साथ बात करके अपना जीमेल डोमेन ऐड कराना पड़ेगा अपने पोर्टल में, तब आप इनवाइट भेज पाएंगे, अदरवाइज वो जीमेल पिक नहीं करेगा। ऑल्सो अगर किसी भी कॉर्पोरेट के पास मल्टीपल डोमेन्स हैं, लाइक वी डू हैव makeMyTrip.com, go-mmt.com, redbus.com, goibibo.com, तो हम वो सारे डोमेन्स आपके अकाउंट में ऐड करवा देते हैं, सो दैट आपको किसी भी डोमेन को यूज करना है साइन अप के लिए, वो आप यूज कर पाते हैं। उसके लिए आपको एक रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है सपोर्ट के पास, और वो वहां से प्रोसेस होता है। तो दैट ऑल्सो यू कैन डू फॉर दैट। इसके बाद जब आप एम्प्लॉयज को ऐड कर लेते हैं, तो आप अगर पॉलिसी सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उनके ग्रुप्स बना सकते हैं, और जो पॉलिसी सेट होती है वो ग्रुप वाइज होती है। सपोज मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि यहाँ पे जैसे हमने ग्रुप्स बना रखे हैं एम्प्लॉयज के, एडमिन ग्रुप, सीएक्सओ लेवल ग्रुप, जूनियर ग्रुप। तो यहाँ पे जूनियर ग्रुप में जितने एम्प्लॉयज हैं सबकी पॉलिसी सेम होंगी, सीएक्सओ लेवल के एम्प्लॉयज की पॉलिसी सेम होगी, एडमिन के ग्रुप की पॉलिसी सेम होगी। तो वहाँ पे हम लोग, जो मैंने आपको पॉलिसी सारी बताई थी, बजट पॉलिसीज, अप्रूवल पॉलिसीज, बुकिंग विंडो, अप्रूवल मैट्रिक्स, वो ग्रुप वाइज सेट हो जाती है। So that way also you can customize your own groups and your own policies. So this is what about the sign up also. फिर भी अगर आपको किसी को डायरेक्ट साइन अप करना है, so you can just simply go on the MyBiz, search on the MyBiz link on the Google, और वहां से आप डायरेक्टली लॉग इन भी कर सकते हैं। mybiz.makemytrip/v2 करके इसका लिंक आता है, which I just share it on the email. Just give me a moment. Chat box में भी वो लिंक मैं अभी शेयर कर रहा हूँ, so that also you can do. I'll show you how. सो ये साइन अप लिंक है, जो किसी को अगर डायरेक्ट साइन अप करना होता है तो आप इस लिंक के थ्रू भी कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉय के साथ शेयर कर सकते हैं, वो इसके लिंक के थ्रू भी साइन अप कर सकते हैं। तो बेसिकली साइन अप में अब आपको यहाँ पे इस लिंक पे जाते हैं तो इस तरह का पेज खुलता है, एंड किसी को अगर सॉफ्ट बेनिफिट, या प्लीज सॉरी, जो हम क्रिएटिव्स एक्चुअली इनरोल करें उसके साथ जो साइन अप लिंक है, इट हैज अ CEMP अटैच्ड टू इट, तो Yes. आप ये लिंक मत अभी दीजिए। So Nagendra, I'm unable to share it with all the participants. तो मैंने आपके साथ personally share किया है, so if you can put it on the common chat. Sure, I'll do that. Guys, I'm sharing it on the link which is customized for the GJPC members. ये साइन अप लिंक मैंने चैट बॉक्स में अभी सबके लिए शेयर किया है, प्लीज यूज दैट। एंड ये स्पेसिफिकली फॉर द GJPC मेंबर्स है। फॉर दिस साइन अप लिंक यू कैन गो इट ऑन दैट एंड साइन अप। नागेंद्र, मैं आपके क्रिएटिव के साथ ये लिंक भी मैं मेंबर्स को मेल कर दूंगा, and I'll publish it on WhatsApp also, that people can directly use this link. Right, absolutely. Thank तो you. ये सेम आपको जब अपने मेंबर्स को भेजना है, आप उसके साथ में ये इंफॉर्मेशन भी भेज सकते हैं दैट जो भी GJPC के मेंबर साइन अप करेंगे, along with that we will be providing some upcoming offers in the upcoming events, and we will circulate the information to all of them through you only. So guys, so far sign up se leke booking flow, product related, if any queries, please let us know on the chat box. One thing I would, at the end of this webinar, I would like to tell you guys,
in the starting, you may find some kind of adjustment issues using the new platform. Don't worry about it. Keep using it. Any issues, please call us directly, communicate with our support team. On Monday or Tuesday, we'll be sharing you the direct SPOC details also through GJEPC members. And you will be getting a direct number and the email ID to get your queries will be resolved. Any post-sales issue, you'll be having a direct number and the email ID of support team. They are working 24/7 dedicatedly only for the corporate bookings, not for the personal bookings. Make My Trip personal का support अलग है, normal corporate का अलग है. So be assured कि आपकी corporate inquiries जितनी भी हैं वो immediately pick होती हैं और resolve भी. Ajay, that's it from my side. Anything from your end and the members, I would like to know any queries, please. Thank you, Nagendra, Riya, and Priyanka, for a literally wonderful session that you have conducted. I think so. It was the easiest way one can avail the best platform that you are promoting. Of course, I'll share the details of login with your contact number in an upcoming week, and I'll hope that people should use it and communicate with you anything. Thank you for once again for your time and insight from Make My Trip. Hope we will keep continuing our relationship. Definitely, Ajay. Thanks a lot, and all the members. Thanks to you for joining this session. It's really wonderful to have you all on the same platform, and we'll continue to assure you for the best of the services from Make My Trip. Thank you. Thank you, guys.